So it's known as CERN, and it's working on I don't know, discovering the mysterious part of the universe, how universe is working. This is at the same time a collaborative approach of scientists, physicists, engineers, BBA guys, and I mean literally people from all aspects of life. They are making this effort to making a change in what humanity is going through. So it's a very biggest, it's really a marvelous thing. If someone wants to ask anything about this particular project or this particular lab, I can answer that more comprehensively in the question answer session. But just to give you guys an inspiration, these things are all made from the scientists, the people like you and me. So this particular picture is of the sky crane landing the rover on the Martian surface, and yeah, so the whole phase of launching a metal box, a metallic thing from planet Earth to Mars consists of many multiple stages. We can talk about that again comprehensively in that thing, but just imagine people, just imagine the humanity from where it has evolved so far. If I think that there's no confusion, and for more swiftness I can perhaps switch to Urdu. आप लोग ये सोचें कि ये जो लोहे का डब्बा है, लोहे की और तारों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये अर्थ के कोर से निकली हुई चीज़ें, उसको ह्यूमंस ने ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, और उसको अपने से कहीं दूर, जहाँ शायद कभी कोई लाइफ गई नहीं हुई, वहाँ पे अपना मार्वल प्रेजेंट किया. अगर इस वक्त मार्स पर कोई सिविलाइजेशन होती, तो इस वक्त वो ह्यूमैनिटी की, अर्थ पीपल की बेस्ट प्रोडक्ट देख रही होती. If there was any life, might be there can be life of different aspect, depends on हम life किसको कहते हैं. But just to tell you कि being human is a privilege, and living and for humans living in this particular era is a privilege. So आप लोगों को मतलब you guys have a lot more opportunities जो शायद Niels Bohr, Albert Einstein, या maybe the king of let's suppose 400 500 years would have. आप लोग उन सब के caliber से कहीं आगे हैं, and you guys have this what I would say bundle of opportunities to change the future, the way things would evolve in the future. Next thing, ye इन्होंने of course when they were working an engineer, he was working on this particular robot, तो उसकी एक picture है. वीडियोस फिर वो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, बट लेट्स सी. अच्छा, तो ये ओवरव्यू ऑफ कैरियर पे है, बट आई गेस ये पिक्चर सही तरह नज़र नहीं आ रही, तो लेट मी स्विच यू टुवर्ड्स अनदर व्यू. जी, ये फ्लो चार्ट नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सॉरी. uh, Based on my experience, some input from seniors, and consulting some books and stuff, I narrowed down the procedure of somewhat making a sense of career in this following flowchart. The first thing which you guys should know, that you should think about your interest. वो इंटरेस्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं. लेट्स सपोज आपको मार्वल यूनिवर्स पसंद है या डीसी यूनिवर्स पसंद है, किस तरह के सुपर हीरोज पसंद है, किस तरह की मूवीज़ अच्छी लगती हैं. इन सारी चीज़ों को आप एक पेज पर नोट डाउन करना शुरू कर दें. अल्टीमेटली यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि इनमें एक पैटर्न है. चाहे आप वो मूवीज़ उठा लें या लोगों से, जिस तरह के लोगों से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक पेज पर लिख लें. मूवीज़ फेवरेट एक पेज पे लिख लें. कह देना था. हेलो. बुक्स. हेलो. जी, तो आप इस तरह की जो आपके इंटरेस्ट की, लेट सपोज बुक्स हो गई, मूवीज़ हो गई, या इंटरेस्टिंग पीपल, या जो आपके क्लोज एक्वेंटेंस में जिनसे आपकी अच्छी फ्रैंकनेस है, उन सब के नाम एक पेज पे लिख लें. देन स्टार्ट मेकिंग सर्कल ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन अमंग देम. यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट कि वो इंटरेस्ट या वो चीज़ें जो आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें पता नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो ये बेसिक बेबी स्टेप वो है. When you'll write down these things, you will eventually find out a pattern. आपकी फेवरेट मूवी, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो वो,
अगर आप ब्लॉग्स देखते हैं तो वो, व्लॉग्स देखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो वो, व्लॉग्स व्लॉग्स जो होते हैं वीडियो व्लॉग्स वो देखते हैं तो उनकी नेचर, इन सब में आपको ना कोई कॉमन चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी. Eventually you'll came to find out that you are good at this thing, you would like working on this thing. और इस चीज़ पे काम करते वक्त आपको बेशक कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, still you want to do that. So if you feel some these things about something, that means you are very close to finding your interest. अच्छा, आप अब हो सकता है कि आपकी दो तीन इंटरेस्ट आ जाएं, तो 5 इंटरेस्ट आ गए, यू राइट देम डाउन. यू देन जस्ट हैव टू डिसाइड कि क्या ये प्रैक्टिकल है. अगर किसी का इंटरेस्ट ये हो कि मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, कहीं मैं किसी को मॉक ना कर दूँ अनइंटेंशनली. सो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज इन माय इन यूनिवर्सिटी इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, माय लैब टीचर आस्क्ड, माय लैब इंस्ट्रक्टर ही आस्क्ड कि व्हाट डू यू वांट टू डू. तो मेरे माइंड में शुरू से था कि आई वांट टू फ्लाई लाइक बर्ड्स. सो मैंने उनको इंस्टेंटली बोल दिया खड़े होके कि सर मैं मैकेनिकल विंग्स बनाना चाहता हूँ. द क्लास दे लाफ्ड अ बिट, बट दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड दैट. अब मैंने उस मोमेंट को मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मैंने वो कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं की थी. मतलब वो मेरा जो इंटरेस्ट जिस चीज़ को बता रहा था वो इम्प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन उस बात को डिलीवर करने का वे या उस वक्त जो मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस थी वो इम्प्रैक्टिकल थी. अगर अज्यूम कर भी लिया जाए कि मैं चलो मैकेनिकल विंग्स बना लेता हूँ जिससे मैं उड़ सकता हूँ या ह्यूमंस कैन फ्लाई, व्हाट्स व्हाट्स द बेनिफिट इन इट, हाउ कैन ह्यूमैनिटी बेनिफिट फ्रॉम इट. इससे किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क आएगा क्या? बुक्स में लिखा जाएगा कि एक इंसान उड़ रहा है, हालांकि एक इंसान के उड़ने से ज़्यादा सेफ एंड बेस्ट एयरप्लेन्स हैं, तो वाई वुड आई गो टू समथिंग डिफरेंट. ये सारी सेंस मेरे मेरे माइंड में बाद में चीज़ें एक्सप्लोर करके एक्सपोजर के बाद आई. तो लिस्ट देम डाउन के आइदर दे आर प्रैक्टिकल और दे आर फैंटेसीज. सो जब आपने फैंटेसीज और प्रैक्टिकल को अलहदा कर लिया, क्योंकि अगर आप फैनेटिकल जो इंटरेस्ट है उनको लेके चलेंगे ना, उनका रिजल्ट ये होगा कि कुछ टाइम बाद आप विड्रॉ कर देंगे इससे. आपको ज़्यादा एफर्ट करने का, आपको अगर हार्ड पॉइंट वहाँ पे फेस होता है ना उस इंटरेस्ट को परस्यू करने में, यू से अच्छा चलो लीव इट, बाद में कर लूँगा. लेकिन इफ़ दैट इंटरेस्ट इज प्रैक्टिकल एंड टोटली वट यू हैव डिसाइडेड बेस्ड ऑन ऊपर वाली एक्सरसाइज, तो यूल से नहीं यार, ये जो प्रॉब्लम है ये मैं करके ही रहूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं. अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू आइदर सॉल्व इट, और वो दुनिया में ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम बन जाएगी. ट्रूली आई एम रियली सेइंग दैट कि अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके किसी प्रॉब्लम पे स्टक होते हैं और वो प्रॉब्लम आपकी, आप गिव अप नहीं कर रहे लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना, वैसे ऐसा होता नहीं है, मिल जाता है सोल्यूशन. तो वो सोल्यूशन, तो वो जो प्रॉब्लम होगी ना वो वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम होगी शायद, जो सॉल्व नहीं हो पा रही होगी. सो दिस इज द पावर ऑफ थॉट, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एंड थॉट अगर आप इस तरह से चलें. अच्छा, उसके बाद यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट. इफ यू नो इट, लाइक फॉर एग्जांपल, मोस्टली इन चीज़ों को हम दो में नैरो डाउन कर सकते हैं, मनी या इम्पैक्ट. It's a harsh and a dark thing, but it's a true one. If you don't know, then you have to repeat this cycle again. And once you know, you can then decide if it's a money and an impact. If it's money, you can focus towards entrepreneurship, taking risk. आपके mind में जो baby child, brain child आया है, एक idea आया है, उसको reality में बनाएं, उससे earn करें, be a CEO or have a private jet, have an infinity pool on your roof. इस तरह की अगर आपकी thought है, which is not bad, I'm again saying many people are doing this thing. So then your way of doing this thing would be very different from if you want to make an impact. हो सकता है कि आप entrepreneurship करके भी impact बनाना चाहें. That also holds true, but मैं अभी strictly monetarily और influential और impact की terms में बात कर रहा हूँ. अगर आपके अंदर entrepreneurship, आप you narrow down that I have to be an entrepreneur, then you need to develop सॉफ्ट स्किल्स, पीपल स्किल्स जिनको कहते हैं, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली. आपके ब्रेन में जो आइडिया है उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग द वे यू आर थिंकिंग. जिस तरह आप एक चीज़ को सोच रहे हैं ना, वैसे ही दूसरा बंदा भी उस चीज़ को सोचे ना. तो ये दिस इज़ द की पैरामीटर फॉर हैविंग गुड सॉफ्ट स्किल्स. एंड देन मैनेजमेंट स्किल्स. एक जो टीम चीज़ कर सकती है वो कभी भी एक नोबल लॉरिएट भी नहीं कर सकता. अगर मैं एवरेज इंजीनियर्स की टीम की बात करूं, उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाए और एक नोबल लॉरिएट को दे दी जाए जिसने 2-3 नोबल प्राइजेस जीते हों,
तो दैट टीम वुड सरपास हिम। ये कोई मैं फ्लैटरिंग बात या इंस्पायर करने की बात नहीं कर रहा, इन इन स्टडीज़ के रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो यू कैन सी दैट टीम वर्क इज इवेंचुअली, मतलब इट्स मोर, यू कैन अचीव मच मोर देन इन टीम वर्क। सो मैनेजमेंट स्किल्स इसी के अंदर वो आती है। अच्छा, आपके पास अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सो मैं ये डेवलप फर्स्ट वाला पार्ट जो था कि डू यू हैव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क था, थर्ड में है कि इफ़ यू डू नॉट हैव, डेवलप दो स्किल्स। उसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने कैपिटल जमा करना है, आपने फंडिंग किस तरह लेनी है, ये सारी चीज़ें। अगर किसी का इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन हुआ तो वी वुड आंसर दैट। आई वुड ट्राई टू आंसर दैट विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बट फिर इसके अंदर काफ़ी सारे इधर स्टेप्स बनते हैं। तो अल्टीमेटली इफ़ यू आर एबल टू डू, लेकिन ये अगर किसी के ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स सही हुए ना, तो ही वुड अल्टीमेटली बिकम अनदर बिल गेट्स और एलोन मस्क। अच्छा, अगर आप इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट के इवन आफ्टर योर व्हेन यू आर नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, कि आपकी जो फैमिली एक लेगेसी बने, पीपल वुड नो दैट, लेट्स सपोज फ़हीम, आदिल, हसीब, अहमद, whosoever was a person who lived in 21st century and he did this thing, if you want that thing, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक है। फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, अल्टीमेटली यू हैव टू नैरो डाउन योर फील्ड। आप वो इम्पैक्ट ह्यूमैनिटीज़ में लाना चाहते हैं, आप वो किस चीज़ में करना चाहते हैं, बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट, आइदर इट्स अ मेडिकल फील्ड, इट्स इंजीनियरिंग फील्ड, इट्स अ बिजनेस फील्ड, कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई स्टार अपने नाम पे देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई जुपिटर, जुपिटर का जो फर्स्ट, मतलब सॉरी इसको भी छोड़ दें अगर, तो अगर ये जो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं इस सेंचुरी के स्टार्ट में टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के नेम पे किए गए हैं। वाई? बिकॉज दे हैव वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन टू दिस दैट रिस्पेक्टिव फील्ड। अब आप बहुत कम सुनेंगे कि नील्स बोहर के नाम पर कोई नासा अपनी स्पेस शिप का नाम रखता है। नो, दे वुड ओनली यूज गैलीलियो, कॉपरनिकस, जो जो एस्ट्रोनॉमी फील्ड से रेलिवेंट है। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपने किस फील्ड में इम्पैक्ट डालना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि एक ही टाइम पे आप जैसे कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में भी बड़ा नाम बन जाएं एंड फिजिसिस्ट भी अच्छे बन जाएं। हो ही नहीं सकता कि एक इंजीनियर कोई सर्जन बन जाए। इट्स एन इम्प्रैक्टिकल थिंग ना, बिकॉज फंडामेंटली ह्यूमन ब्रेन्स आर नॉट डिजाइन टू डू दिस। इसकी एग्जांपल सिंपल सी कह लें, दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना। आप अपने दो पेपर की शीट्स लें, एक हाथ से सेम टाइम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें, दूसरे हाथ से पेंसिल से स्क्वायर ड्रॉ करने की कोशिश करें, यू वोंट बी एबल टू डू दैट थिंग। तो ये इस चीज़ का मतलब, ये बहुत बड़ी स्टडी को मैंने स्मॉल मतलब कॉम्पैक्ट बिट साइज इंफॉर्मेशन में दी है। इसका इस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जो इनहेरेंटली डिफरेंट डोमेन्स होती हैं ना, humans are not designed to do work simultaneously on both। हो सकता है कि आप कोई थ्योरी या कोई डिवाइस बनाएं जो मल्टीपल चीज़ों में बाद में यूज़ हो, बट आपकी उस चीज़ को बनाने में या इम्पैक्ट क्रिएट करते वक्त जो सेंस होगी ना, इट शुड बी वन। कोई बंदा एलईडी, जिस बंदे ने एलईडी बनाई थी, तो एलईडी के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक लाइट सोर्स बनाना चाह रहा था ऑप्टिमल। लेकिन और वो अगर इसके अलावा ये सोचता ना कि उससे फ़ोन के डिस्प्लेस भी बनने चाहिए, ये भी बनने चाहिए, तो एलईडी इन्वेंट ही नहीं हो पाती। ही थॉट कि आई हैव टू मेक एन अ वेरी एफिशिएंट लाइट एमिटिंग सोर्स जो कि कन्वेंशनल बल्ब से ज़्यादा एफिशिएंट हो, छोटा हो, वगैरह वगैरह, जो भी उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, उसने वो बना दी। उसके ऊपर रिसर्च होती रही, होती रही, होती रही, होती रही, होती रही, एंड अल्टीमेटली हमारे फ़ोन के अंदर बिलियंस ऑफ, नॉट बिलियंस आई वुड से, बट एटलीस्ट मिलियंस ऑफ एलईडीज अलाइंड होती हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे स्केल पे। तो पॉइंट बिंग कि यू हैव टू स्पेसिफाई योर डोमेन। जब आपको डोमेन पता लगे ना, फिर यू नीड टू मेक अ गोल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक्जोस्केलेटन्स की या ह्यूमनॉइड्स की बात करें रोबोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनका एक प्रॉब्लम है। आप जितने भी रोबोट्स देख लेना जो बोस्टन डायनामिक्स वगैरह के, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। वो हमेशा ना जैसे थोड़े बेंड वे में खड़े होते हैं। ये एक मैथमेटिकल चैलेंज है, एक इक्वेशन है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही। तो अब एक बंदा जो इम्पैक्ट बनाना चाहता है, उसने जब वो एक्सोस्केलेटन की फील्ड में या ह्यूमनॉइड्स की फील्ड में इम्पैक्ट बनाना चाहता है, वो उस डोमेन में जाएगा ना, तो वो उस डोमेन की प्रॉब्लम्स देखेगा, यार ये मौजूद है, या खुद से प्रपोज कर देगा इफ़ ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट वन।
तो इफ़ नॉट तो वो ऑलरेडी, नॉट ब्रिलियंस एग्जैक्टली, बट वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए तो, बट इफ़ नॉट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को उठाएगा और उसको गोल बना सकता है। ये एक बहुत अच्छा वे है अपने करियर को लाइन करने के लिए कि आपकी फील्ड में जो चैलेंजेस हैं उनको टारगेट कर लें। वंस यू वुड बी एबल टू ओवरकम दैट चैलेंज, आपका नाम, आई डोंट नो, थ्री, मतलब अगर ह्यूमैनिटी रही तो आगे जितनी जनरेशन में आता रहेगा। अब कुछ भी हो जाए, न्यूटन न्यूटन की जो थ्योरी है, जो लॉ उसने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बताया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, it is null when it comes to three body problem, but still आपको अभी तक बुक्स में कितनी सेंचुरीज हो गई, आई थिंक 3 centuries या 2 centuries, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी बैड इट विद डेट्स, बट स्टिल उसका नाम उसी प्रेजेंस, और हम अभी भी अपनी कोर्स में पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। सो पॉइंट बिंग कि आप उन चैलेंजेस को एड्रेस कर देंगे, अल्टीमेटली योर नेम वुड बी remembered. And then once you have the big goal, you can devise your goal into the short one. For example, let's suppose कि एक XYZ पर्सन है, उसने एक रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट की सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फॉर योर नॉलेज, इस वक्त 21st सेंचुरी का बिगेस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब ह्यूमैनिटी का मैथमेटिकल प्रॉब्लम है टू डिवाइस अ प्रॉपर सेल्फ ड्राइविंग कार। ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार की कंपनी है, तो उधर से मुझे ये चीज़ पता चली। अब मुझे ये पता है कि अच्छा ये चैलेंज है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि एक चैलेंज है 11.9 बिलियन माइल्स कवर करने हैं किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को विदाउट एनी एक्सीडेंट, इन ऑर्डर टू जस्ट एग्जिबिट के कार्स आर मच सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर सेफर देन एक्सपर्ट ड्राइवर्स। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे पता चली। तो आई कैन नाउ वर्क इन दिस डायरेक्शन कि मैं उस 11.9 बिलियन माइल का जो वो है उसको अचीव करने की कोशिश करूँ। अब ये कहाँ पे हो रहा है, लेट सपोज ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी यूएस में हो रहा है या एमआईटी में हो रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि ऐसे ही हो रहा हो। तो ये उन उन यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने ये सिर्फ उधर हो रहा है और जगह नहीं हो रहा, तो आई हैव टू चार्टर अ प्लान कि अगर मुझे एमआईटी में लैंड करना है या कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में या क्रैनफील्ड में या जॉर्जिया टेक में या कॉल टेक में, स्टैमफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, किसी में भी जहाँ पे मेरा चैलेंज पे वर्क हो रहा है, तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं। वो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि मैं, आप या कोई भी बंदा कर सकता है। हाउ? गेटिंग गुड सैट स्कोर्स, जीआरई स्कोर्स, अपनी आप जीपीए अच्छा मेंटेन कर लें। चलें, मैं जीपीए पे इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेप्शंस से ज़्यादा वो बात आगे चली गई है अभी इन यूनिवर्सिटीज़ में, नॉट मेजोरिटी बट फिर भी ऐसे लोग अबेंडेंटली आना शुरू हो गए हैं जिनके जीपीए एवरेज हैं, बट दे हैव वेरी गुड सैट स्कोर्स। क्योंकि जीपीए डिटरमिन करने का जो क्राइटेरिया है वो थ्रू आउट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट है। इसलिए नो वन वुड कैन से दिस थिंग विद श्योरिटी के 4.0 या 3.8 या 3.9 या 3.5 जीपीए का जो स्टूडेंट है, ही इज़, लेट्स सपोज, 8 आउट ऑफ 10 इंटेलेक्चुअल वाइज नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी का डिफरेंस, हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। आप खुद अपने उसमें देख लें कि आपके जो हमारे जो सेमेस्टर्स होते हैं एक यूनिवर्सिटी में, कभी कभार क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है, ए जो सेट हो रहा होता है कभी 80s पे हो रहा होता है, कभी 90s पे हो रहा होता है, कभी 85 लेकर बी प्लस मिल रहा होता है। तो जब इतनी ज़्यादा वेरिएशन है तो हाउ कुड जीपीए बी द सोल पैरामीटर टू डिसाइड दैट हाउ गुड यू आर एट समथिंग। सो इसके इसलिए फिर जनरलाइज साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करके टेस्ट बनाए गए, जैसे एस हो गए, जी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बंदे, जी मैट हो गया। तो यू नो कि अच्छा मैंने, इफ़ आई वांट टू लैंड इन एमआईटी, आई शुड बी हैविंग, लेट्स सपोज 1400 प्लस एस स्कोर्स, या जी है तो मोर देन 300, 320 प्लस मेरे अगर स्कोर होगा तो आई वुड बी हैविंग मोर एडवांटेज एंड स्टफ लाइक दैट। वो ऐसे, वो जो आपका एक बिगर गोल है ना जो आपको अभी अचीवेबल नहीं लग रहा, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे भी सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो रही है या कोई और मैथमेटिकल चैलेंज है, जब आप शॉर्ट गोल्स बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा मैं ये चीज़ करूँ, इतना जीपीए मेंटेन करूँ, ये कोर्सेज करूँ, ये इतना स्कोर लूँ, तो अल्टीमेटली आई वुड बी इन एमआईटी, या अल्टीमेटली आई वुड बी इन एक्स वाई ज़ी वट एवर यूनिवर्सिटी। तो आपकी चीज़ डुएबल हो जाएगी, हाइपोथेटिकल नहीं रहेगी कि ये डिफरेंस है, वो है, वगैरह वगैरह। यू वुड स्टार्ट टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन दे वुड कम, एंड इवेंचुअली या तो आप चांद पर लैंड कर जाएंगे या कैंसर का क्योर फाइंड आउट कर लेंगे,
या आप लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाएगा. So that's how you can formulate your things. Again, जब you have devised your short term goals, इसके बाद there's a series of steps जिनको आपको करना पड़ेगा. वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन just to give you guys an overview, तो वो फिर you need to perform those steps and ultimately you would make a great change in that aspect. अच्छा, उसके बाद I was talking about the research. अगर आप में से किसी को research में जाने का शौक है, तो यू शुड बी हैविंग दीज पर्टिकुलर 4 ट्रेड्स एटलीस्ट. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नैरो डाउन मैंने किए हैं तो ये 4 होने चाहिए. अगर नहीं है तो डू थिंग्स विच इंश्योर्स कि आपके अंदर ये चीज़ है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच आनी चाहिए. ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, बट आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं. देखें, आप अगर इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो नो वन, आई एम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑन सीरियस नोट्स, नो वन वुड एज्यूम कि आपको फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे आते होंगे, आपको एप्सिलॉन एप्सिलॉन की वैल्यू आती होगी, आपको पाई 8 डेसिमल प्लेसेस तक आता होगा. नो, ना आप कोई ये भी नहीं एज्यूम करेगा कि आपको पीडीज ओडीज लीनियर अलजेब्रा सारी चीज़ें वन गो में आती होंगी. हाउएवर दे वुड एक्सपेक्ट कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू वुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये एक ओडी से सॉल्व हो सकता है या पार्शियल. ये सेंस आनी चाहिए. यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ लोग कहते हैं ना, मैं यूनिवर्सिटी में ये चीज़ सिखाया नहीं गया, ये नहीं गया. दे कैन समटाइम्स बी राइट बट नॉट ऑलवेज. यूनिवर्सिटी का जो गोल होता है ना, वो ये होता है कि आपको थिंकिंग पैटर्न सिखा सके. आपको सिखा सके कि हाउ टू थिंक लाइक एन इंजीनियर इफ यू आर एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर इफ यू आर इन अ लॉ कॉलेज, हाउ टू थिंक लाइक अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ यू आर इन अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जो भी जितने भी फील्ड्स बनते हैं. इस थिंकिंग को इम्पार्ट करना ये यूनिवर्सिटी का रोल होता है. अब पीपल एक्सपेक्ट कि नई यूनिवर्सिटी में यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए. नो नो. इफ मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी से ही, मतलब एयर यूनिवर्सिटी से हूँ, अगर कोई और भी बाहर का है तो बिकॉज एक्सप्लिसिटली एयर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट. मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत सुपरफिशियल नहीं है. आई वॉज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स गाय, बिल्कुल आई एम टोटली एवरेज गाय. इफ यू गाइज वुड गो टू माई लिंक्डइन, आप उसमें देख सकते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूशन, आई ग्रेजुएटेड, आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज. एवरीवन नोज व्हाट गवर्नमेंट कॉलेज इज लाइक एंड स्टफ लाइक दैट. बट ये जो सेंस बनी है ना, ये यूनिवर्सिटी की सर्कमस्टांसेस से बनी है. मैंने थोड़ी अपने आप पर इन्वेस्टमेंट की in terms of time. I invested in myself in thinking about how to think in a way that can ultimately help me. फिर मैंने देखा कि यार नहीं, my university is not bad, it's way much better than many other universities. मैं I can say this thing very proudly and confidently, and if someone has any questions, I can very frankly answer them, because I have studied 1 month in a class with international students, both European, Asian, and Americans. मैंने एक महीने उन लोगों के साथ 3 कोर्सेज पढ़े हैं. आई नो हाउ मैं साथ बैठा हुआ था, मेरे एक राइट साइड पे चाइनीज़ होगा, लेफ्ट पे फ्रेंच बैठा हुआ था, पीछे कोई ग्रीक लड़की बैठी हुई थी. सो आई नो हाउ दे वर्क. हमारे ग्रुप्स बने. पाकिस्तानी स्टूडेंट इज वे मच capable, I'm not saying able, but capable of doing much more things than those average guys. If I'm thinking this way, तो that means कि मैं hypothetically नहीं कह रहा, मैंने उनके work देखे, उनकी group dynamics देखी, and then I can make this argument. हालांकि उनके पास बहुत सारी facilities है. जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था, that's उसके अंदर बसें चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. So लेकिन if I'm able to evaluate them, if I'm able to still get A grades in those people, then that means कि जो मेरी foundations बनी हुई हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ, जिधर से ग्रूम हुआ, वो यूनिवर्सिटी मुझे कुछ तो सिखा रही है ना, कि I'm able to at least complete them. So ये सारी चीज़ें ना आपको यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होनी चाहिए. खैर वो बात थोड़ी सी दूसरी उस पर चली गई. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग विच यूनिवर्सिटी विच फंडामेंटली, आई मीन, हेल्प यू सॉर्ट आउट. अगर आपको यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं सिखा रही ना, then that's an issue. You should ask them, you should ask your teachers, you should convey that thing to directors, management कि नहीं, हमें problem solving में मसला आ रहा है. You cannot say कि हमारा OD का टीचर ख़राब है, हमारे पास मतलब लैब में 2 कंप्यूटर नहीं 3 हैं, मतलब 2 हैं 3 होने चाहिए. You should go with a solution कि let's suppose डायरेक्टर XYZ, डायरेक्टर एजुकेशन, ये जो भी मैनेजमेंट है, ये HOD, कि this is an issue, we think
कि अगर एक तीसरा कंप्यूटर आ जाए या दो ही है तो उसमें इस तरह मैनेज किया जाए टाइम, तो वी वुड बी मोर एबल टू सॉर्ट इट आउट। ये नहीं है कि वी शुड से कि नहीं लैब भी छोटी है या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, बट दे आर नॉट एन एक्सक्यूज to say that we cannot be good problem solver and stuff like that. I know people from Air University, graduation, जो graduation है ना वो आपका career का mindset develop करती है. I know from people from Air University who landed at Carnegie Mellon, one of the best MIT of robotics कहा जाता है उसको. I know people from Air University who landed in MIT. I know people from Air University who are now working in JPL, जो NASA की laboratory है, Jet Propulsion Laboratory. So ये नो वाली बात नहीं, if someone would ask I can even link them with those people, but point being कि if people are able to go there, that means that university has something which is not evident in and dependent on how big our universities, how big our labs are, how super qualified our teachers are. No, if it's giving you the environment for solving the problem, perfect, your university is perfect. If not, तो आपकी यूनिवर्सिटी चाहे नर्स से भी बड़ी हो जाए, आपके टीचर्स जो हैं वो बाहर से आने वाले हो जाएं, इफ़ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स अ बैड यूनिवर्सिटी एंड यू शुड कन्वे दैट थिंग. अच्छा, फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात आती है कि हाउ टू, इफ़ यू नो द प्रॉब्लम, हाउ शुड यू हाउ शुड यू मेक इट इन अ वे कि उसको सॉल्व किया जाए. बचपन में हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, राइट? कि लेट्स सपोज देयर आर थ्री एप्पल्स, Ahmed gave four to other. How many are now? Yeah, a bat and a ball cost $1.10. A ball is $1 more. A ball is $1 less than the bat. What is the actual price of bat? अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, इसको फॉर्मुलेट करके आपने किसकी इक्वेशन बनानी है, तो वो जो इक्वेशन है ना वो बनाना आनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कि जो आपके माइंड में प्रॉब्लम है उसको सॉल्वेबल वे में लाया जाए. दिस थिंग should be learned if you want to pursue your career in research. अच्छा, फिर आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ कि आप ज़्यादा टाइम तक के लिए एक चीज़ पे फोकस रहें. ऑन एवरेज ह्यूमन, इवन क्लासरूम में भी, ऑन एवरेज ह्यूमन कैन फोकस फॉर नॉट मोर देन 15 मिनट्स. ये स्टडी का मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ. अगर आपने वो 15 मिनट्स का बार 40 मिनट्स तक 1 आवर तक लेके जाना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस. उसके बाद मेथड्स हैं. सो रिसर्च में अगर आपने जाना है तो आपने अपने फोकस की स्किल्स बढ़ाने. एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रिसर्च के अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. इफ़ यू नो हाउ टू थिंक क्रिटिकली ना, लिटरली यू हैव द बिगेस्ट एसेट विद योर सेल्फ. आप सारी स्किल्स लर्न कर लेंगे अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का वो है. कि अच्छा, जब ये मैं कहता हूँ ना लैंग्वेजेस लर्न करना या कोई नई चीज़ स्किल लर्न करना, इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है. आपको सोचा भी, पबजी देख लें या कॉड देख लें, कोई भी नई गेम आती है, आपको किसी भी एक इंडिविजुअल को फ़ोन पकड़ा दिया जाए और कहे कि आप खेलें, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, आप मास्टर हो जाएंगे. हालांकि वो गेम उस वे में आपने कभी देखी ही नहीं है. आपका ब्रेन सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कोई गेम हो सकती है. बट अल्टीमेटली व्हेन यू हैव इट, 90% of people would be able to play that thing fluently. तो that means कि एक certain level पर जो brain का potential है वो somewhat same है. You need to manage that potential somehow. So research के लिए critical thinking is way more important. अच्छा, opportunities की बात जो है वो थोड़ी और डिटेल में हम बात कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में दे शुड टोटली फोकस, फर्स्ट समर में, सॉरी जो फर्स्ट समर आता है, दे शुड फोकस ऑन द स्किल्स. पाइथन लर्न करना शुरू कर दें. एम्बेडेड सिस्टम्स में इंटरेस्ट है तो उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, आर्टॉस हो गया, वो यू शुड नो दैट थिंग, स्टार्ट लर्निंग देम. वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी उठा ले नहीं सिखाया जाएगा. आप खुद कोर्सेज पे जाके लर्न करें, वो दे आर सेल्फ सफिशिएंटली, इस पर कोई डाउट है ही नहीं. फर्स्ट में तो आपको ये होना चाहिए कि आप स्किल्स लर्न करें. सेकंड में यू शुड फोकस के एटलीस्ट 2 इंटर्नशिप्स हो सकें. एटलीस्ट अगर एक हो जाए तो वेल एंड गुड, किसी मल्टी में, क्योंकि 3 मंथ्स की होती है. लेकिन स्टिल नहीं मिल रही तो दो किसी एवरेज उसमें एटलीस्ट इंटर्नशिप हो जाए जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट हो. यूँ भी हो सकता है कि आप एक मैनेजमेंट की कर लें और एक अपने सोली, मतलब
इंजीनियरिंग की कर लें या वट्स एवर आपका वो है, बट मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए। या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं, अबंडेंट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम, हमारी यूनिवर्सिटी के एमओयू साइन हुए हुए हैं। उनमें से ही एक में मैं गया था चाइना में, तो समर्स में ही गया था मैं। तो वो होते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, यू ग्रेड यूनाइटेड स्टेट्स का वो होता है, उसमें 1 सेमेस्टर एक्सचेंज होता है, तो डू दैट थिंग। थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड समर में सॉरी, यू शुड टोटली फोकस्ड ऑन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। चाहे आपने इंडस्ट्री में जाना है, चाहे आपने बिजनेस में जाना है, चाहे आपने रिसर्च में जाना है, आपका थर्ड सेमेस्टर शुड बी सोली ऑन योर एफ आई पी। वैल्यू बना है एफ आई पी से। आपका कुछ भी एफ आई पी होगा, चाहे रिसर्च में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जॉब में यही होगा, व्हाट वाज योर एफ आई पी। और जिस तरह से आपने एफ आई पी को किया होगा, उसी हिसाब से आपको जनरली रोल दिया जाएगा, अनलेस और until you have very good links, but still links भी क्या करते हैं, इंटरव्यू रूम तक पहुंचा देते हैं। अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो जिसको भी आप रिकमेंड कर दें अच्छी जगह पे, 2 महीने 3 महीने बाद ही हिमसेल्फ वुड विदड्रॉ फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन में पीयर प्रेशर होगा। आपके राइट साइड वाला बंदा इतना काम कर रहा है, लेफ्ट वाला इतना कर रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल। तो इफ you have thoroughly done your work on your FIP, then ultimately it would land you at a good place. अच्छा, अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इंटर्नशिप्स होती हैं, सेमेस्टर एक्सचेंजेस होते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप रिसर्च असिस्टेंट बन जाते हैं। एंड वो फिर इवेंचुअली आपको सॉल्व, हाँ ये भी हो सकता है कि आप एक रिसर्च बेस्ड अपॉर्चुनिटी उठाएं सेकेंड सेमेस्टर में, उस पर वर्क करें एंड अपना एफ आई पी भी उस पर कर लें। ये फिर वो ट्रैक हो जाएगा कि अगर आपको डायरेक्ट एम एस करना एंड देन पी एच डी करना, इफ़ यू डू नॉट हैव प्लान्स टू डू द जॉब एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन फिर कॉपरेट पे आ जाते हैं, जिसमें आप सिर्फ एम टी ओज या इस तरह की चीज़ में जाते हैं। एंड अल्टीमेटली just the moment when you graduate, you already have an opportunity to join any company and stuff like that. इन सब की डिटेल्स में मैं फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन में इसको मैं एड्रेस करूँगा कि जॉब्स नहीं है वगैरह वगैरह इस सारी चीज़ों को, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह, हाउ कैन यू कैटेगराइज द अपॉर्चुनिटीज। So that's all from my side. I have more questions and suggestions. थैंक यू शाम भाई फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन इंडीड। अब आप सब में से जो भी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं वो काइंडली हैंड रेस कर लें और माइक में ओपन कीजिएगा। जी दाऊद, आप माइक ओपन कर लें, क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फोर्थ आई एम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट BEE से। तो Okay. मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट समर था वो तो चला गया ड्यू टू कोविड, क्योंकि उसमें भी हमारा सेमेस्टर कंटिन्यू था। एंड सेकंड समर में भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स लाइक कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करूं। तो कोई ऐसा अभी तक ना सोर्स नहीं मिला या कोई भी चीज़, मतलब किस टाइप की इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत सारी इंटर्नशिप्स में ऐसा होता है कि वो अप्लाई ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, तो वो एक बड़ा ना डिप्रेसिंग सा मोमेंट होता है कि आप ये किस तरह कर रहे हो या कब करोगे। तो वो ये चीज़ थोड़ी सा, मतलब आप एक वे बता दें कि इंटर्नशिप्स में कैसे हमें पता चल सकेगा कहाँ पे अप्लाई करना। ऑल राइट। तो बहुत अच्छा और जेनेरिक क्वेश्चन है, तो लेट मी ब्रेक इट डाउन अ बिट। इंटर्नशिप्स ना दो तरह की होती हैं। एक इंटर्नशिप्स या जॉब कुछ भी आप उठा लें, एक होती है एडवर्टाइज और एक अनसॉलिसिटेड होती है। अनसॉलिसिटेड मीन्स देयर इज नो वैकेंसी, समथिंग यू योरसेल्फ प्रेजेंट दैट एंड यू कन्विंस देम। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, उसमें तो ये होता है कि यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 वीक्स, आप रिसर्च करें और एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लें कि लास्ट टाइम कोका कोला, नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, उन्होंने किस टाइम पे अपनी ओपनिंग्स की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। इवन जस्ट यू इंस्टेंटली टाइप के जो इंटर्नशिप है नेस्ले की लास्ट टाइम, एम टी ओ की थी, ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, या जी टी ओज की थी, या सिंपल समर इंटर्नशिप थी, वो लास्ट टाइम कब हुई थी, उसी टाइम के अंदर अंदर ब्रैकेट में आप उनकी वेबसाइट पे जाना शुरू कर दें। ऐसे पेजेस हैं फेसबुक पे, एंड आई वुड इवन आस्क द रास्ट टीम,
हम अभी थोड़ा सा बैठ कर इस चीज़ को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉपर पैनल हो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। वैसे तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप खुद रिसर्च करें, एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ वेरी इजी टू डू। तो वो लिंक्स आपको आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो एडवर्टाइज अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करें। अब क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, हम एडवर्टाइज में भी अप्लाई करते हैं, उनके टेस्ट होते हैं ना, पहले इनिशियली टेस्ट आप क्लियर करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर एक और टेस्ट होता है, देन दे शॉर्ट लिस्ट यू फॉर समथिंग। बड़ी मल्टीनेशनल का ये है, मैंने एंग्रो का दिया है, नेस्ले का दिया है, पीएनजी का दिया है। तो कहीं पे मैं फर्स्ट टेस्ट में ही वापस आ गए, कहीं पे मैं इंटरव्यू तक गया एंड स्टफ लाइक दैट। तो कहीं पे कहीं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, पीएलसी प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एवेंसियन, उनके मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ पे मैंने अनसॉलिसिटेड इंटर्नशिप के थ्रू अप्लाई किया था। व्हाट इज़ दैट? यू मेक अ गुड कवर लेटर, आप उनको बताते हैं, आप उनको ना क्योंकि देखें, एडवर्टाइजमेंट जब आती है ना किसी भी जॉब या इंटर्नशिप की, दैट मीन्स उस कंपनी को उस चीज़ की नीड है। अगर कोई नहीं आई हुई तो इसका मतलब कंपनी को नीड नहीं है। उस केस में अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। बाय अनसॉलिसिटेड इट आई मीन कि वो आप खुद से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो उसका ऑफिस इस्लामाबाद में, यू मेक अ गुड सीवी, यू मेक अ गुड कवर लेटर, आप जाएँ उनके फ्रंट डेस्क पे, एंड यू कैन क्लियरली से देन दैट आई वांट टू टॉक टू योर एचआर मैनेजर just for a few minutes, कुछ information लेंगे। You go them and you can say कि I'm searching for some internship opportunities, and I by doing some research I found out कि जो मेरे ambitions और goals हैं वो आपकी जो जिस vision पे आपकी company काम करी है उसमें काफ़ी similarity है. So it would be really honor for me if I would be provided to work in any capacity. However, if you think that there is no capacity, I have some proposition. मैं आपकी कंपनी में इस उसमें काम कर सकता हूँ, क्योंकि आपने उस कंपनी को की थॉरो रिसर्च की भी होगी ना, आपको आइडिया होगा कि इस तरह की नीड है। एक एम्बेडेड की कंपनी, यू नो दैट उनको आर्टॉस आने वाले बंदे की ज़रूरत, हर कंपनी जितनी बड़ी कंपनी हो जाए उनको एक जूनियर डेवलपर की नीड होती है। तो बजाय कि वो हायर करें तो जनरली गो फॉर इंटर्न्स। तो यू कैन से कि आई कैन बी एन इंटर्न। अगर आपका जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल नहीं है, तो यू कैन जस्ट क्लियरली से देम कि आप मुझे नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे रख लें। अच्छी कंपनीज नहीं रखती, दे ऑलवेज कंपनसेट यू, बट आप ये लाइन बोलते हैं तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यू कैन से दैट इवन टू, मतलब अपनी बात को और सॉलिडिफाई करने के लिए, यू कैन से दिस थिंग दैट जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, यू कैन असेस दैट इन अ वीक। आप एक वीक में मुझे एक असाइनमेंट दें, इफ़ आई एम एबल टू डू दैट असाइनमेंट अप टू योर रिक्वायरमेंट्स, देन परहैप्स वी कैन हैव another सेशन जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आई शुड परसू माई इंटर्नशिप और व्हाट्सएवर जॉब या कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप गए, मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी बंदा एक अनसॉलिसिटेड की केस में जो बंदा है, जो एचआर का बंदा या बंदी बैठी हुई होगी ना, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होगी कि इस तरह से होगा। तो दिस रिस्पॉन्स विल कैच देम विद अ सरप्राइज, एंड दे वुड से कि नहीं, ये बंदा है, मतलब लेट्स गिव दैट पर्सन अ चांस। इसमें कुछ कंपनी का रिसोर्स भी वेस्ट नहीं हो रहा और हमारी ऑन हैंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये जो अप्रोच है ना, आई नो 4 people इन माई सर्कल हु डिड दैट। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, आई डिड दैट। फर्स्ट तो मैं खुद ही हूँ ना, बिकॉज आई डिड दैट। मेरे जब व्हेन आई वाज इन द लास्ट वीक ऑफ माय ग्रेजुएशन, आई हैड 4 opportunities: एवेंसियन, टेलीसॉर, ऑटो कैनवस, एंड व्हाट वाज द अदर वन, इस्लामाबाद में ही है इनका ऑफिस, आई डोंट रिमेंबर, बट वो एम्बेडेड की ही थी। तो बट मैंने फिर वो टेस्ट किए एंड आई थॉट आउट कि मैं इस पे ऑटो कैनवस में जाऊँ। अल्टीमेटली उन्होंने पहले मुझे इंटर्नशिप ऑफर की। उन्होंने फर्स्ट मंथ के बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि ये रोल है हमारे पास मैपिंग इंजीनियर का, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन परहैप्स यू शुड ज्वाइन इट, अदरवाइज हम फिर आपके टेन्योर के एंड पे देखते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू। वो मेरे जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई थी वो मेरे करियर गोल्स के साथ इतनी मैच नहीं करी थी, तो आई सेड नो। मेरे साथ जो एक और मेरा फेलो गया था, ही गॉट दैट एंड ही गॉट द जॉब इन आफ्टर द फर्स्ट मंथ। उसके बाद 3 months के बाद मेरी इवैल्यूएशन हुई एंड दे गिव मी अ रोल विच आई एम हैप्पी वर्किंग विद इट। तो अल्टीमेटली now I'm a proper employee of that company. It's been like 9 months since I graduated and 9 months of work experience.
तो पॉइंट बीइंग के इस तरह से होता है, यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन द प्रूविंग ग्राउंड्स। अगर किस तरह से कवर लेटर बनाना है, किस तरह से पिच करनी है, ये सारे मटेरियल्स जो हैं वी कैन शेयर इट सून थ्रू रास, एंड शॉर्ट लिस्ट करके हम फिर इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी मैं बाकी भी अपने जो मेरे बैच के कोलीग्स हैं उनके साथ मैं इन टच हूँ, तो वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट एक इंटर्नी को हर जो स्टूडेंट है ना, अगर 10 बंदे तो 10 इंटर्नीज एटलीस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट में किसी भी कैपेसिटी में लगाएं। बेशक वो 1 मंथ की इंटर्नशिप ऑन पेड हो, लेकिन बच्चों को आइडिया हो जाए, क्योंकि व्हाट यू आर लर्निंग इन यूनिवर्सिटी डजंट गारंटी दैट, इवन इफ यू आर द टॉपर डजंट गारंटी दैट आप डेस्क पे बैठोगे एंड यू वुड बी द नेक्स्ट व्हाट आई वुड से, कोई मूवी कैरेक्टर का नाम नहीं आ रहा, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कोई बहुत स्मार्ट कोडर है, so you would be like that. No, you need a training, you need a certain level of on job training for that. So I guess मैंने somewhat आपका question address कर दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकीज़ा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकीज़ा आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं वालेकुम सलाम। 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आपने स्टार्ट में प्रॉब्लम्स बताई थी, लॉस ऑफ कैरियर सेंस, उसका क्या सॉल्यूशन होगा? देखें, अगर हम उस डायग्राम की तरफ जाएं कि लॉस ऑफ, ये प्रॉब्लम्स थी अवेयरनेस की, ठीक है, तो अल्टीमेटली कैरियर पे अलाइन करने के लिए ये मैंने एक डायग्राम, एक प्रोसेस शेयर किया था, जिसके थ्रू इफ़ यू वुड फॉलो इट अल्टीमेटली यू वुड बी able to get what you, in what career you want to go into. तो अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक कैरियर के माइंड में बारे में आप बात करना चाह रही हैं तो आई कैन आंसर इट, बट अगर आपको जनरल आंसर चाहिए तो वो यही है कि अलाइन योर इंटरेस्ट, ट्राई टू सी थिंग्स विच यू आर गुड एट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह, आप किस डिपार्टमेंट से हैं बाय द वे? सॉरी आई मिस्ड इट। मैकेट्रॉनिक्स। अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स है, और लेट्स, आप 4th सेमेस्टर में, राइट? यस। ओके, तो 4th सेमेस्टर के अंदर आपने अभी जितने भी कोर्सेज किए, आप पहले तो आप फर्स्ट थिंग तो ये कि आप अपने इंटरेस्ट अलाइन करें उसी एक्सरसाइज के थ्रू, जिस तरह मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि फेवरेट मूवीज़, उन लोगों के नाम जिनके साथ आप स्पेंड किया हुआ टाइम आपको अच्छा लगता है, बुक्स यू रीड, एंड हर वो चीज़ जो आपको पसंद है उनको लिखें और उनमें कॉमनैलिटीज़ फाइंड आउट करें। आपको एक वेग पिक्चर पता लग जाएगी कि मुझे इस चीज़ में ज़्यादा शौक है, फिर आप उसको डिवाइस करेंगे कि ये प्रैक्टिकल है या फैंटेसी है, व्हाटसोएवर। तो अल्टीमेटली यू वुड बी एबल टू गेट दैट सेंस के व्हाट इट इज़। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आई एक्चुअली लॉस्ट अ पॉइंट विच आई वाज जस्ट अबाउट टू से, गिव मी अ मोमेंट। यू फाइंड आउट कि आपका अच्छा ये इंटरेस्ट है, आपने एक इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। अब आप ये देखें कि उस इंटरेस्ट पे इवन सिर्फ एक्ट करने के लिए, अभी परफेक्शन की बात नहीं है, परफेक्शन या कॉम्पिटेंसी करने के बाद आपको कैरियर सेंस मिलेगी। अभी उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर एक्ट करने के लिए क्या आपके पास स्किल सेट है? इफ़ यू नो दैट यू कैन, लेट्स सपोज आपकी कैरियर है कि आई वांट टू बी अ सिंगर, कैन यू सिंग? if you want to be a good pianist or violinist, can you play violin, can you play piano? If not, then first learn that, then do it। आपको खुद पता लग जाएगा कि अगर आप लर्निंग के प्रोसीजर में बैकआउट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये आपका इंटरेस्ट भी है। देन अल्टीमेटली यू विल हैव अ डायरेक्शन कि अच्छा मैंने पियानिस्ट या वायलिनिस्ट बनना है। अब जब वायलिनिस्ट में आप आएंगी तो आप कहेंगी नहीं, मुझे वायलिन बजाने से ज़्यादा अच्छा वायलिन की सिम्फनी कंपोज करने में मज़ा आता है। अगर उसमें आए तो फिर आप उसमें फिर आपको ना, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, यू विल स्टार्ट सीइंग द ऑप्शंस। आजकल की वर्ल्ड में सिर्फ ये नहीं है कि वायलिनिस्ट बनना है तो जस्ट, इफ यू आर वायलिनिस्ट यू शुड जस्ट नो हाउ टू प्ले वायलिन। नो, यू नीड टू नो हाउ टू कंपोज अ सिम्फनी, हाउ टू राइट सिम्फनी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉन्ग, अपने थॉट्स और अपने जो आपके माइंड में एक फील आ रही है उस फील को वायलिन के थ्रू लोगों के अंदर कैसे इम्पार्ट करना है। इसकी फिर स्टडीज़ हैं, इसकी मीडिया स्टडीज़ आ जाएंगी, इसकी इंस्ट्रूमेंट पर स्पेसिफिक कोर्सेज आ जाएंगे, वो करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली
we can sometimes hear that Pakis are the new and the greatest violinist from South Asia. Let's suppose if this turns out to be your career, तो career sense एक gradual चीज़ है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आ जाएगी. But the track जो मैंने यहाँ पे mention किया है, you need to pursue this thing. हो सकता है इसमें एडिशन हो, लेकिन इसमें से कोई स्टेप रिडंडेंट नहीं. हो सकता है कि जो थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट और लिस्ट देम प्रैक्टिकल लिस्ट देयर आइदर देयर प्रैक्टिकल और फैंटेसी बेस्ड, इनके दरमियान 5-6 और स्टेप्स हों, लेकिन ये दो लाजमी होंगे. तो इफ़ यू फॉलो दिस चार्टर, अल्टीमेटली आपको कैरियर की सेंस खुद आ जाएगी. नो, आप खुद बताएं कि जब साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप जब देखेंगे ना साइकिल चलाने वाले को, यार ये तो बहुत आसान है, पेडल मारना और चल लेना. जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो आपको बैलेंस करने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन टाइम बीइंग आहिस्ता आहिस्ता करके आपको स्किड्स मारना भी आ जाएंगी, आपको व्हील उठाना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. हालांकि आप सोच नहीं रहे होंगे कि मैं स्टार्ट में ये करूँगा, लेकिन ग्रेजुअली लर्निंग के प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो कैरियर सेंस भी इसी तरह की चीज़ है कि वंस यू स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन दैट आई हैव स्पेसिफाइड, या और जितने मटेरियल में जो इंटरनेट पे या बुक्स में या जो आपके इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं उसमें है, अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट टू फाइंड आउट इन व्हाट वे यू आर. प्रॉब्लम नंबर 1 ये होनी चाहिए ना कि यू शुड हैव दिस थॉट इन योर माइंड कि नहीं, मेरा मुझे कैरियर सेंस नहीं आ रही है. इफ यू आर थिंकिंग, दैट मीन्स दैट यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप. यू नो दैट देयर इज अ चेंज विच यू नीड. अगर तो बंदे के माइंड में सोच ही नहीं आ रही ना कि यार कैरियर कोई चीज़ होती है, तो वो बंदा ज़्यादा डेंजर में एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि परेशान रहता है हर वक्त कि मैं कैरियर के लिए क्या करूं. एटलीस्ट उसको कैरियर की इम्पोर्टेंस या कैरियर का रिलेशन सक्सेस के साथ, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में है तो सही. तो इस तरह का सेशन जैसे आपने अभी अटेंड किया, इस तरह की बुक्स, कोर्सेज और इस तरह के लोगों, मतलब जिन लोगों को आप सक्सेसफुल समझती हैं, उनके साथ जब आप बात करेंगे आपकी सेंस परफेक्टली क्लियर हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोइंग दैट व्हाट्स रॉन्ग विद यू. तो ये जेनेरिक आंसर है आपके क्वेश्चन का. आई होप मैंने समवट कर दिया, बट स्टिल इफ more explanation is needed, I can give that as well. Thank you. I got my answer. Great. जी, next question is सैयद मूसा, आपने हैंड रेज किया हुआ था. If you still wanna question. Okay, Hamza Khan, now it's your turn. Okay. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल का. और मैं आप ये बताएं कि इंटर्नशिप मतलब कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात इंटर्नशिप के दरमियान ये हमारी जो क्लासेस होती हैं इनका क्या होता है, और इसके बाद क्या होता है इंटर्नशिप. जैसे आपने कहा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वहाँ से हम जाते हैं, और कुछ कंपनीज के पास हम खुद को प्रेजेंट करते हैं. तो उस कंडीशन में हम किससे जाके मिलेंगे, क्योंकि कंपनी में तो काफ़ी सारे मैनेजर्स होते हैं और मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो हमें किससे जाके मिलना है कि इंटर्नशिप हमें चाहिए बेसिक, क्योंकि डेफिनेटली आप एक प्रैक्टिकल फील्ड में, आप एक कंपनी में हैं, तो आपको मालूम होगा. जी जी बिल्कुल. सो बेसिकली योर क्वेश्चन इज अ 2 part क्वेश्चन. एक तो ये है कि व्हेन टू डू इंटर्नशिप, क्योंकि आपने बीच में स्टडीज़ को मेंशन किया. दूसरा ये कि हाउ टू गो फॉर अनसॉलिसिटेड वंस, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर तो हर कोई अप्लाई कर रहा होता है और वो आ जाती हैं. अगर ये है कि वो एडवर्टाइज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इंटर्नशिप को कैसे करें, तो वो मैंने बात की है कि हम राज के फोरम से ट्राई करेंगे कि आपको चैनल्स प्रोवाइड करें, वरना इंटरनेट इज़ ऑलवेज देयर, यू कैन लिटरली सर्च. यही लिख लेंगे गूगल पे इंटर्नशिप्स इन लेट्स सपोज एम्बेडेड, या इंटर्नशिप इन प्रोग्रामिंग, या इंटर्नशिप इन माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल इन पाकिस्तान. 10-12 ऐसी आ जाएंगी जो एडवर्टाइज हो रही होंगी, इफ़ दैट्स द टाइम. अनसॉलिसिटेड की जो बात है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले कि जो आपने बात की है कि स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करें. देखें, इंटर्नशिप का जो ग्लोबली प्रोसीजर है ना, जो समवट हर जगह नज़र आता है, दैट इज़ मोस्टली इन समर ब्रेक्स. अब बाहर की जो ग्रेजुएशन होती है ना, जो बाहर का 4 years बैचलर्स का प्रोग्राम होता है, नॉट 4 years, वो 5 और 6 पे भी चला जाता है. उसमें होता ही है कि वो फर्स्ट 1 year या 2 year तक आपको जेनेरिक कोर्सेज पढ़ाते हैं, जिसमें कैलकुलस और जो अगर आप इंजीनियरिंग में इस तरह के कोर्सेज बढ़ाएंगे, और आपका वो इस तरह से आपको इंटरेस्ट करने की कोशिश करते हैं. वो फिर उनका एक कोर्स होता है टू, आई वुड इवन ट्राई टू कन्वे दिस थिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक कोई 1 क्रेडिट आवर का या 2 क्रेडिट आवर का एक कैरियर सेशन रखे कंपलसरी,
जिसमें क्रेडिट्स भी हों और आपकी डिग्री में वो आएँ, इलेक्टिव के तौर पे रखें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इंटरनेशनल जो मोड ऑफ करिकुलम है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में तो कोई बात ही नहीं करते। अगर आप इवन मैकेट्रॉनिक्स में ही इनरोल होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, दे वुड नेवर गिव यू द कोर्स रिलेवेंट टू मैकेट्रॉनिक्स। वो जेनेरिक वन जिससे इंजीनियरिंग माइंडसेट डेवलप हो वो पढ़ाते हैं पहले। हमारी यूनिवर्सिटी में भी समवट पहले सेमेस्टर में वही फॉलो होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर कोर्स स्पेसिफिक आते हैं। तो आपका माइंडसेट वो उस तरह से करके डेवलप होता है। अब ये जो इंटर्नशिप की अभी आप बात कर रहे हैं ना, वो पॉइंट में ये कह रहा था कि हाँ, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें ये होता है कि जब आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, देन यू कैन फ्रीज योर सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर ब्रेक लें, एंड यू कैन डू इंटर्नशिप्स इन मल्टीपल वेज, मल्टीपल कंपनीज। तो आपको कंपनी में काम करके आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं इसके लिए वेल सूटेड हूँ, एंड देन कंपनी को देखकर यू कैन चूज योर मेजर। आप मैकेट्रॉनिक्स में एनरोल हुए थे, आप वो हटा के इलेक्ट्रिकल या इवन बिजनेस में भी जा सकते हैं इफ़ यू थिंक के नहीं मैं इसमें ज़्यादा सूटेड हूँ। तो ये तो बाहर का मोड है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल और इस तरह ये यहाँ पे भी ले लो, यू कैन फ्रीज योर सेमेस्टर, बट इकोनॉमिकली और अदरवाइज जो सर्कमस्टांसेस होते हैं एवरेज स्टूडेंट के, वो डिफरेंट होते हैं। तो 4 इयर्स की डिग्री यहाँ पे नॉर्म है। तो 4 इयर्स की डिग्री के लिए जो बेस्ट विंडो है ना, वो बनती है समर्स का मतलब जो समर ब्रेक होती है, समर ब्रेक में करें आप। अगर फिर उसके समर ब्रेक से भी आपकी थर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाती कि नहीं और करने, तो फिर विंटर ब्रेक्स आती हैं, लेकिन आइडियल इज समर ब्रेक्स, एंड परफेक्ट वन इज़ फर्स्ट सेमेस्टर की। अब जैसा किसी ने भी मेंशन किया था कि फर्स्ट समर वाली हमारी चली गई, तो अभी इतना टाइम ऑनलाइन क्लासेस में गुजरे, बहुत सारे आई कैन नेम अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम। हमारी अपनी कंपनी, क्योंकि उनकी अब हायरिंग अब वो क्लोज हो गई भी रिसेंटली, 2 महीने पहले उन्होंने ख़त्म किए। तो जितने भी नए ग्रेजुएट्स इंटर्न्स आए, दे आर इनिशियली वर्किंग फ्रॉम होम। तो वर्किंग फ्रॉम होम की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आजकल की मार्केट में अवेलेबल हैं। जॉब की डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बट यू विल एटलीस्ट लर्न थिंग्स। तो आई वुड से कि ड्यूरिंग स्टडीज़ वर्क फ्रॉम होम करना, इट्स सुपर ईजी, लिटरली सुपर ईजी। तो गो फॉर दिस। अब समर आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि समर्स ब्रेक्स और वर्क फ्रॉम होम, इसमें आप इंटर्नशिप को मैनेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेड के लिए अप्रोच कैसे करें। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपकी इंटेंडेड कंपनी सिटी से बाहर है, मेल टू देयर एचआर। और अगर उस कंपनी में कोई बंदा है या कोई सीनियर है जिसको यू नो, वो ऐड देम ऑन लिंक्डइन, और उनसे कहें कि आप प्लीज़ इसको रेफ़र कर दें। क्योंकि एलियन कंपनीज में जब आप अप्लाई करते हैं अनसॉलिसिटेड, तो इफ़ यू हैव अ रेफरेंस, देन देर आर फेयर चांसेस कि यू गेट देयर। अगर वो आपकी सिटी से बाहर है, अगर विद इन सिटी है, तो गो टू देयर ऑफिस। बेस्ट चीज़ है इन पर्सन जाना। इट्स आई मीन हाउ वुड आई पुट इट इन वर्ड्स के ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अब आप जाएंगे रिसेप्शन पे यू कैन जस्ट सिंपली से दैट आई वांट टू टॉक टू द एचआर, आई हैव सम क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी। तो या फिर आप उनके रिसेप्शन पे कॉल करके एचआर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लें, तो वो भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इनको वॉक इन इंटरव्यूज़ कहते हैं, तो इफ़ यू गो टू द रिसेप्शन एंड से दैट आई वांट टू टॉक टू योर एचआर मैनेजर, इस टाइम पे जाएं कि लंच के बाद वाला टाइम, आफ्टर 2 PM, 1 से 2 ब्रेक होता है जनरली कंपनीज में। तो एचआर के पास जाएं, देन यू कैन पिच देम के जिस तरह भी मैंने पहले बताया कि यू कैन से कि मेरे विजन्स और ये अलाइन होते हैं, व्हाट्सएवर। वो फिर एक हम पिचिंग सेशन रख सकते हैं समझाने के लिए, और कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से पिच किया जाए। लेकिन यू से देम, इफ़ अगर आपको फिर भी लगता है कि एचआर इम्प्रेस नहीं हो, तो यू ड्रॉप योर सीवी, कहें कि ठीक है मैम, बट आई थिंक यू और द मैनेजर, द टेक्निकल मैनेजर माइट बी लुकिंग फॉर समथिंग इन नियर फ्यूचर। तो ये मेरी सीवी और ये मेरा कवर लेटर है, आई होप आई कैन बी यूजफुल समडे फॉर योर कंपनी, आप देखे आ जाएं। 80% चांसेस हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। दे वुड आइदर कॉन्टेक्ट यू या ऑन स्पॉट आपसे टेक्निकल इंटरव्यू ले लेंगे। तो दिस Okay, इज द thank वे you. टू अप्रोच दैट। Sayyid Musa Hussain, now you can ask question. Musa, are you still here? Akib Amjad. गुड आफ्टरनून उसामा भाई। गुड आफ्टरनून। उसामा भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास मिनिमम स्किल्स कौन से होने चाहिए कि हम इंटर्नशिप हासिल कर पाए, मतलब हम जाएं।
तो हमें मिल जाए, मतलब हम एक वैल्यूएबल कैंडिडेट देखें। और दूसरी बात यह है कि हम जो क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह डेवलप कर सकते हैं एज ए इंजीनियर। देखिए ये आपने दो क्वेश्चन इस वक्त पूछे हैं, करेक्ट मी। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये दो क्वेश्चन है, राइट? तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि जो इंटर्नशिप इज़ समथिंग कि कॉर्पोरेट कल्चर में बैठे हुए या कंपनी में बैठे हुए लोग अज्यूम कर रहे थे कि इंटर्नी को कुछ नहीं आता। सो इंटर्नशिप के लिए नथिंग इज़ रिक्वायर्ड अदर देन कि वो बस फील्ड का होना चाहिए। यू कैन नॉट डू एन इंटर्नशिप, परहैप्स कुछ जगह पे होता है कि आप एक हॉस्पिटल में एज अ टेक्नीशियन के उसमें आप भी कर सकते हैं इंटर्नशिप, जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट है ना, वो ये होती है कि आपकी फील्ड और उस कंपनी में जो वर्क हो रहा है वो अलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा वो कंपनी, लेट सपोज अगर वो सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो उसमें बेसिक लेवल का नॉलेज उस कंपनी के प्रोडक्ट का आपको होना चाहिए। लेट सपोज अगर वो कंपनी पाइथन पे वर्क नहीं भी पता पाइथन का, तो आपको पता है कि तमाम प्रोग्रामिंग कंपनी समवट C++ या पाइथन हर जगह यूज़ होती है। इवन ये जो अभी ये इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर मार्स में गया, इनका पूरा कोड C++ का ऑनलाइन अवेलेबल है गिटहब पर। अगर कोई भी देखना चाहे एफ प्राइम के नेम से, दे कैन सी इट एंड दे कैन इवन मेक दैट थिंग एट योर ओन प्लेस। मतलब ऑफ कोर्स यू नीड इंजीनियरिंग स्किल सेट फॉर दैट, बट मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके पास मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, दे वुड नेवर आस्क यू फॉर एक्सपीरियंस, दे वुड ओनली आस्क फॉर योर स्किल्स। स्किल्स की बात आती है, नैरो डाउन करें इस क्वेश्चन को, तो स्किल्स में जो उसका कोर वर्क है ना, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे वोंट आस्क यू कि पाइथन में अगर आपने ये चीज़ करनी है तो उसका कोड बताना। दे वुड जस्ट आस्क यू कि क्या पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है। जस्ट मैं एक वो बता रहा हूँ। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जाते हैं, दे वोंट आस्क यू कि आप लेडर वो बताएं कि क्या क्या वो होता है। वो पूछेंगे कि PLC क्या चीज़ होती है, जिस जो लॉजिकल कंट्रोलर होता है इनका। ये बताएं HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या चीज़ होती है। आपको PLC के किसी सॉफ्टवेयर पे इंटरेक्शन है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे होंगे, आप एटलीस्ट इतना तो होमवर्क करके जाएंगे ना कि उस कंपनी में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो क्या है। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट दे जनरली सी फॉर दैट। इसके बाद कन्विंस करना, ये आपकी चीज़ है। हो सकता है कि आपका स्किल सेट बिल्कुल 2 लेवल आउट ऑफ 10, 2/10 हो आपका ना, but you can exceptionally present yourself. They would instantly get you कि अच्छा ठीक है आप वर्क करें, and perhaps you would be very good, आपको उनकी पूरी पूरी लॉजिक्स पता हो, but if you cannot convince them, even advertise internship you can, you know, जब आप उसमें नहीं वो कर सकें कोप अप। जो आपका आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? इफ मैं थोड़ा सा आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। कि हम क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह डेवलप कर सकते हैं। यस, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये होता है कि यू शुड वॉच द साइंटिफिक वीडियोस, लेटेस्ट डिस्कवरी आर्टिकल्स रीडिंग। फर्स्ट तो ये है, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइज एटलीस्ट कर सकें। उसके बाद ये कि मेक सच फ्रेंड्स हु कैन डिबेट विदाउट हैविंग इमोशंस इन इट। क्योंकि जब इमोशंस डिबेट से हट जाते हैं ना, तब बंदा खुद ब खुद लॉजिक पे आ जाता है। तो बंदा ये नहीं सोचता कि यार मैं ये पॉइंट अब मैं रेज करूंगा तो ये मेरा भाई है, ये दोस्त है, ये बुरा मान जाएगा। यू आर प्रेजेंटिंग इट बिकॉज इट्स लॉजिकली ट्रू। इसकी अगर मैं और ये मैंने चने फिर भी थोड़ी सी वो बात कर दी है जो कि शायद अभी कॉम्प्रिहेंडेबल ना हो, लेकिन अगर इसको और उसमें मैं नैरो डाउन करूँ, ऐसी बहुत सारी फ्री एप्स हैं या वो हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। दे कैन मेक दे कैन एनहांस योर क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे बड़ी जो इस वक्त ऐप है वो ब्रिलियंट के नेम से है। तो ब्रिलियंट में जाके आप कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट 5-10 मिनट्स के कोर्सेज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइजेज होती हैं, MCQs होते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो कि जिससे आप इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग देम अल्टीमेटली आप वो कोर्स ही क्रिटिकल थिंकिंग का है, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने लीनियर अलजेब्रा बेसिक मैथमेटिक्स का उस पर उठाया है तो वो आपका अच्छा हो जाएगा, या डिबेट कंक्लूड करने का आपने वो उठाए वो अच्छा हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स के क्रिटिकल थिंकिंग में आप करें डिस्कशंस एंड सम एप्स विच हैव कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ब्रिलियंट है, आई गेस यू ऑल शुड ट्राई दैट। थैंक यू सर। Shazib, now you can ask your question.
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। वही मैंने पूछना था कि मेका के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, लाइक हमारे तकरीबन हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा हमारा पार्ट है, लाइक सीएस का भी है, इलेक्ट्रिकल में से भी है, तो हमारे लिए मेका वालों के लिए क्या एक स्पेसिफिक जॉब टाइप हो सकती है? देखिए अगर लाइक हम आपका एक चीज में हम मास्टर्स नहीं कर रहे, जैसे मैकेनिकल वाले हैं वो मैकेनिकल में मास्टर्स हो रहा है उनका, मतलब कंप्लीट उनको स्किल्स मैकेनिकल की मिल रही है, इलेक्ट्रिकल वालों को फुल इलेक्ट्रिकल से मिल रही है, लेकिन हमें तो हर फील्ड से मिल रही है ना, मैकेट्रॉनिक्स वालों को। हम्म, तो हमारे वो लिए तो क्या स्पेसिफिक फील्ड होगी? देखें एक मैं इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड ऑलरेडी नॉलेज में ये एंड यस। वाइडली एक्सेप्टेड है। फर्स्ट थिंग कि आई थिंक एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है ना, ही और शी इज़ अ इंडिपेंडेंट इंजीनियर। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को यू कैन वो ना वन मिसर का एनालिसिस नहीं कर सकता स्ट्रक्चर पे, उसको कैड नहीं आता होगा, एक्सेप्शंस हैं, हो सकता है एक दो को आती हो, लेकिन जनरल नहीं पढ़ाया जाता। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट का है, वो बहुत अच्छा कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करके आई डोंट नो पता नहीं क्या निकाले, बट परहैप्स वो शायद एक एज ब्रिज के थ्रू मोटर नहीं चला सकता, फेयर चांसेस हैं एंड इट्स हाईली प्रोबेबल वो नहीं चला सकेगा। वो बात ये कि दे आर सो मच फील्ड स्पेसिफिक। बीइंग अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर आइडिया। ये वैसे सबके लिए ट्रू है, बट ये मेरी परसेप्शन स्पेसिफिकली मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इतनी कोई चीज़ें नहीं है, वो नहीं है, ये वगैरह वगैरह, बट जस्ट टू मोटिवेट देम इन दैट एस्पेक्ट, इन लॉजिकल एस्पेक्ट, एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं जो उसके माइंड में आए। उसके माइंड में कोई भी आई चीज़ आई ना बैठे बैठे कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, वो उसका ड्राफ्ट पेज करके इंजीनियरिंग ड्राइंग करके ड्राफ्ट बना लेगा, फिर उसको मैकेनिकली एनालाइज कर लेगा, उसकी सर्किटरी भी बेसिक बना लेगा। जाहिर सी बात है इतनी इंटेंसिव लेवल की नहीं बनाएगा, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट प्रूफ कर देगा उस चीज़ को बना के, एंड देन वो और फिर कोड करके चला के वो चीज़ देखेगा। फिर जब वो चीज़ चलने शुरू होगी उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो सकता है फिर वो एक कोर्स करे इलेक्ट्रिकल का, उसका कंट्रोल स्पेसिफाई करने के लिए और अच्छा बनाए, उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर और अच्छा करने के लिए, लाइट वेट करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इनहेरेंटली मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं है, वो उसको बेसिक आती है सिर्फ अपना आइडिया पेश करने के लिए। वो 4-5 सर्टिफिकेशंस करके शेप ऑप्टिमाइजेशन पर आ जाएगा। कोडिंग में इंटेलिजेंट बिहेवियर करना है, वो तो कोडिंग तो सबसे इजी होती है पिच वो मतलब लर्न करने के लिए, इसका लर्निंग कर्व सबसे ज़्यादा स्टीप होता है, जल्दी पिक कर लेता है बंदा, तो वो लर्न कर लेगा। अल्टीमेटली मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर ज़्यादा टाइम बाद, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करके, मतलब 2 साल एटलीस्ट अगर और लगाए, तो ही वुड बी, मतलब हाउ वुड आई पुट इट, वे वे मोर practical than an electrical and computer engineer in generic problems। ठीक है, ये तो जस्ट एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या ऐसी चीज़ें, तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे PLCs लगी होती हैं, ऑटोमेशन इन्वॉल्व होती है, उधर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कैन बी एम्प्लॉयड। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आज, अब जिस कंपनी में मैं हूँ वो बेसिकली एक जर्मन सॉफ्टवेयर हाउस ही है, बस हमारी एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा हार्डवेयर की तरफ है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, तो उसमें मैकेट्रॉनिक का जो नॉलेज है ना वो यूज़ करके आई एम हेल्पिंग द कंपनी टू ड्राइव अ सेल्फ ड्राइविंग कार। तो वो हमारा प्राइमरी स्किल सेट यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि कोड करने के लिए मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेज वाले एक्सपर्ट होंगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में, कोडिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में, बट दे कैन नॉट बी एज गुड एज एन इंजीनियर, एन एवरेज इंजीनियर इज इन मैथ्स। तो आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आप यू कैन वेरी इजीली फिट इन सॉफ्टवेयर कंपनीज। अभी एफिनिटी ने कितने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, 2 तो मैं जानता हूँ, दे आर इन वर्किंग इन एफिनिटी। एफिनिटी काफ़ी बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है ये। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपकी सारी हो गई। प्लांट ऑपरेशन जो होते हैं जितने भी, एंग्रो हो गया, ये नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनके पास मतलब देयर इज़ अ वेरी ह्यूज स्कोप फॉर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स टू ज्वाइन। वो अभी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बंदे वो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इफ अगेन अनसॉलिसिटेड वे में आप जाएं तो यू कैन ईजीली, इफ यू कन्विंस देम, तो you fit very perfectly in that. You need to tell them that you can do it way much better than an electrical or mechanical engineer. I'm not demoting any electrical or mechanical engineer who's present here, but just saying कि ऐसी बात नहीं है, you
have that thing. Plus आपको एक factual बात और बताऊं, जो Shell है, I've been to Shell Eco Marathon twice. तो एक दफ़ा मैं उनके स्विट्ज़रलैंड के कंट्री लीड वहाँ पे आई हुई थी, तो उनसे मैं बात कर रहा था. शी सेड कि ऑन एवरेज जो कंट्रोल्स और मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स, दे रेफर टू मैकेट्रॉनिक सिस्टम एज दिस थिंग, कंट्रोल्स एंड मैकेट्रॉनिक्स. कंट्रोल्स एंड मैकेट्रॉनिक्स का जो सिस्टम, कंट्रोल्स एंड मैकेट्रॉनिक्स का जो बंदा होता है, उसकी एवरेज पे नॉर्मल इंजीनियर से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, 10% ज़्यादा होती है, नॉट टाइम्स. तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की जो वर्थ है ग्लोबली भी और अब पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक आ चुकी है. द थिंग इज़, जो इंडस्ट्री में बंदा बैठा है, यू नीड टू टेल देम अभी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सर्कमस्टांसेस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट कंट्रोल, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज में एक गैप है. तो क्योंकि एकेडमिया अपनी चीज़ सही तरह फोकस नहीं कर पा रही है, इंडस्ट्री उस चीज़ को सही तरह नहीं गेन कर पा रही, इस गैप की वजह से ये स्टूडेंट्स की समवट रोल बन रहा है. बनना नहीं चाहिए, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे. हम अब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे. स्टूडेंट्स को रियलाइज करवाना है इंडस्ट्री को कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर कैन डू दिस 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 एंड दैट थिंग. बाहर तो मसला ही नहीं है. बाहर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मैं स्टडी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स खत्म हो रही हैं. तो जो सबसे लेट जॉब खत्म होगी ये वो ऑटोमेशन और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की होगी. तो बहुत फार फ्यूचर की बात की इन्होंने. तो जस्ट ये पॉइंट है कि बाहर तो इस चीज़ का मसला नहीं है. इन पाकिस्तान यू नीड टू टेल देम कि आप यहाँ में फिट कर सकते हैं. मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मैं आपकी कंपनी में इस चीज़ को अभी ये 80% आउटपुट दे रही है, मैं 85% करके दिखा सकता हूँ इस प्रोसीजर से. That's how you'll land in there. ओके, थैंक यू. सही लेकिन जिस तरह स्टार्ट में आपने बताया था कि एक जो टीम वर्क होता है वो एक स्कॉलर के वर्क से ज्यादा बेहतर है. तो जिस तरह मैका वाले इंडिपेंडेंटली अगर बना करते हैं तो उस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. नहीं, ये मैंने आपको सोली वर्क प्लेस के लिहाज से बताया. आप खुद बताएं, अगर आप एक कंपनी में हैं और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, और आपको ऑटोमेशन का टास्क दे दिया है, क्या आप उस सिस्टम के मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को उतनी तरह असेस कर सकेंगे? मतलब आप जो अपना इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, टीम होती है ना कंपनीज में, तो या तो आप किसी टीम के मेंबर होते हैं या टीम लीड होते हैं. तो considering if you're team lead, can you propose a project which is equally sound in electrical and mechanically optimized, just as a mechatronics engineer can do? No. आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे कि इसमें अगर इसमें एज ब्रिज लगाए तो इसमें IGBTs होने चाहिए या फिर MOSFETs होने चाहिए, BJTs नहीं होने चाहिए. बट आप उसका मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहे होंगे कि मोटर अगर इस तरह से लगी हुई है तो टॉर्क ज़्यादा लग रहा है और उसकी वजह से अल्टीमेटली ज़्यादा करंट ड्रेन हो रहा है. आप ज़्यादा करंट को फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आप उसके कॉज को नहीं पिक कर सकते क्योंकि मैकेनिकल एस्पेक्ट है. इफ़ यू वुड बी अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, यू वुड हैव एन एडेड एक्सपर्टीज या एडेड क्वालिटी, आई वुड से, कि आप उस सिस्टम को एक इलेक्ट्रिकल या एक मैकेनिकल या एक कंप्यूटर साइंस के बंदे से ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज बना सकते हैं. ओके, थैंक यू. Musa, now it's your turn. My name is Said Musa, and I'm a mechanical engineering student at Air University in second semester. And first of all, Usama bhai, your presentation was a very informative one, a really good one. Thank you. And I had a few questions in my mind. And at the current moment, we all know that the world is progressing at a very high rate. And if we look back about 10 to 15 days, it was completely different. So my question from this point of view is that, like, we as young engineers would have enough space in future for getting up more ideas for innovation in the future technological world. Would we be having that opportunity? आप क्या अपने क्वेश्चन को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं प्लीज? जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यानी वर्ल्ड में यानी एट द करंट मोमेंट बहुत ज़्यादा जो है इनोवेशंस आ चुकी हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें लाइक वी ऑल सी के ड्राइविंग बीन इंट्रोड्यूस्ड
ठीक है, ईवी कार्स, ईवी व्हीकल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है एज कम्पेयर टू 10 to 15 ईयर्स बैक अगर हम लोग देखें तो जिस रेट पे हमारी वर्ल्ड तरक्की कर रही है, तो क्या आगे फ्यूचर में हम इंजीनियर्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग इतने एक आइडिया मतलब कंपटीशन टफ होगा, तो क्या हमारे पास इतने एक आइडियाज होंगे कि लाइक वी वुड बी एबल टू गेट अप देयर? Great, it is a critical question, literally. Or I'm very happy that you put it in that way. Yes, the simplest answer is yes, always. It is sort of, I would say, a part of evolution. How? आप खुद देखें कि when a steam engine was invented और पता चला कि हम इंसानों के अलावा एक स्टीम इंजन 10 दफ़ा काम कर सकते हैं, तो उस वक्त के जो इंजीनियर होंगे उनके लिए वही बेस्ट चीज़ होगी. उस वक्त बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ डिस्कवर हुआ और उसके बिहाफ पे स्टीम इंजन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बनी. बट दे डजंट स्टॉप देयर. Why they did not stop at that moment? Because जो माइंड की एवोल्यूशन है ना, वो हमेशा बाउंड्री को पुश करती है. रिसर्च का मैकेनिज्म है ही ये कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो मौजूद है ना, उसके अंदर डेंट पैदा करना. वो अगर मैं सारे नॉलेज को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, तो समझ लें उस सर्कल का जो एरिया ना वो बढ़ाना. दिस इज रिसर्च. तो अगर अभी आप खुद देखें, अभी जो आप अपने जिस भी प्रोग्राम में हैं, आपने जो चीज़ें अभी लर्न की हैं, अगर आप न्यूटन का लॉ देख रहे हैं, तो वो न्यूटन ने 30-40 ईयर्स की एज में उस चीज़ को डिस्कवर किया था. विच यू कैन यू नो यू आर अप्लाइंग दैट थिंग इन इवन फर्स्ट ईयर. अब आपकी जो आप क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं या एनाइलेशन, इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये अब हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जिस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, उस तक में ये चीज़ें मौजूद हैं. आई रिमेंबर कि ये जो टाइम डायलेशन, लेंथ डायलेशन का कॉन्सेप्ट जो आइंस्टाइन का है, रिलेटिविटी का, E = mc², ये आइंस्टाइन का मतलब पेपर पब्लिश हुआ था 1900s में, राइट? एंड यू गाइज आर गेटिंग इट इन इंटरमीडिएट. तो जब आपको पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज पहले दिया गया, तो जाहिर सी बात है अब आपकी जो एफर्ट होगी वो हमेशा चीज़ आके लेके जाएगी. देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ क्या कहते हैं, इनोवेशन एंड रिसर्च. अभी इसलिए ज़्यादा आप कह रहे हैं ना कि इतनी ज़्यादा हो गई, वो इसलिए क्योंकि अब वर्ल्ड कनेक्टेड हो गई है. पहले एट अ टाइम, लेट्स सपोज जो न्यूटन चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है, वो लैपलास किसी और जगह मौजूद होकर वो भी वही चीज़ कर रहा था, क्योंकि इंटर कम्युनिकेशन मौजूद नहीं था. इस वजह से चीज़ें इतनी वो हो नहीं पाई. अब इंटरनेट की वजह से चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो इनोवेशन जल्दी हो रही है, लेकिन इट वोंट स्टॉप. आप खुद बताएं कि जब 200 की बात कर लेते हैं, 2000 की जो है एरा, आई रिमेंबर इन 2004 और 3 ये नोकिया का कौन सा फ़ोन है येलो स्क्रीन वाला, वो आया था. कैन एनीवन इमेजिन कि आज से 15 साल बाद, सिर्फ 15 साल के बाद आपके पास 3.5 mm, 4 mm, 5 mm तक के स्लिम फोन्स आ जाएंगे जिनसे आप ऑन वीडियो कम्युनिकेट कर सकते हैं. नो वन कुड इवन कॉम्प्रीहेंड दैट. मैजिक कंसीडर किया जाता था. ये तो लास्ट 15 इसकी, अगर आप अपना इनोवेशन साइकिल थोड़ा और पीछे लेके जाएं, तो हमने जो पिछले 50 ईयर्स में जो रिसर्च गेन की है, उससे कहीं ज़्यादा हमने इन 15 साल में कर लिए. तो होगा ये कि आगे आने वाले साल में बल्कि इनोवेशन और ज़्यादा हो जाएगी. अगर हम इस ट्रेंड को देखें, और ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि आपके पास, आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा आगे. तो देयर वुड ऑलवेज बी अ रूम ऑफ व्हाट आई वुड से इनोवेशन, रिगार्डलेस जितने भी मर्जी ह्यूमंस एडवांस हो जाए. राइट सर. हमेशा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की वो रहेगी, क्योंकि अब आपको देख लें, अभी जो इनिशिएटिव्स हैं, ब्रेन इम्प्लांट्स, कैन एनीवन थिंक इन 1900s अच्छी खासी थी जहाज बन F-16 20th सेंचुरी का, ये मतलब 90s के एरा में ही बना था ना, ये 1986 का आई गेस. उस वक्त F-16 बन गया था क्या? एंड स्टिल नो वन वुड हैविंग दैट मच क्लू ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ये ब्रेन इम्प्लांट्स. नाउ दिस थिंग इज अ रियलिटी. पहले अगर ये बात की जाती तो लोग इसको मैजिक कंसीडर करते. सो हो सकता है ऐसी फील्ड्स आगे बन जाए जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो फिर उसमें ऑफ कोर्स दोबारा इनोवेशन शुरू हो जाएगी. तो इट्स अच्छा सर, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था. जी जी. मुझे एक सीनियर ने मुझे एक बताया था कि जो आपकी डिग्री होती है, इट्स जस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जो असल चीज़ मैटर करती है, इट्स द स्किल यू डेवलप.
तो इज इट ट्रू कि आगे सिर्फ आपकी स्किल्स ही and other things that profit you? एग्जैक्टली दैट्स 100% ट्रू थिंग, बट पॉइंट बीइंग, अभी आपने वर्ड यूज किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका Yeah. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा उतर ही नहीं रहे, तो आपके पास जो मर्जी स्किल हो, जितने अच्छे लेवल की स्किल हो, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग अनलेस अंटिल यू आर सुपर 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 लकी। अगर आप एक मेडिकल की किसी उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास अपनी फील्ड का परफेक्ट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा, यू आर एक्सेप्शनल, बट उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि यू, अगर आपने मतलब स्पेशलाइजेशन करनी है उसमें, मेडिकल के किसी भी कोर्स में, न्यूरो सर्जरी में, वट्सएवर, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव MBBS। अगर आपके पास वो नहीं है, चाहे आपने BS किया हुआ है MIT से, तो यू वॉन्ट लैंड इन देयर, राइट? So eligibility criteria must be there. A degree ensures that that person thinks in a certain way and is capable to get those concepts. Other than that, degree is जैसा कि आपने mention कि it's just an eligibility criteria. Eligibility criteria है यानी कि आपको हासिल करनी है. If an eligibility criteria to apply at a job is 3, you must be having 3 GPA. वो 3 होगा तो आप एक पूल में तो एटलीस्ट आ जाएंगे ना। उस पूल में फिर कंपटीशन is dependent on how good you are at, let's suppose, programming, management, circuitry, mechanical analysis and stuff like that. But at least उस pool में आने के लिए you need a degree and if possible an average standing in that degree. राइट सर। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि अभी आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बात की सॉफ्ट स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने की, तो हाउ शुड वी एनालाइज कि कौन सी सॉफ्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स वुड बी लाइक मोर वेल डिमांडिंग इन फ्यूचर? आप, आई वुड से कि सबसे पहले तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि लिंक्डइन पर अपनी आईडीज प्रेजेंस बनाएं। यू वुड लर्न अ लॉट देयर जस्ट बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोफाइल्स के क्या क्या रिकॉर्ड है। बाकी जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है ना, वो मतलब मैनेजमेंट में आई वुड से कि टीम लीड, मतलब वर्किंग इन टीम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। पिचिंग, इफेक्टिव पिचिंग, शॉर्ट टाइम में एक आइडिया पिच करना, एंड गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, और आपको लैंग्वेज में फ्लुएंसी, यूजेज ऑफ मतलब क्या कहते हैं उसको, जो जैरेंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, उनको इजी वे में इवेल्युएट करना, बिट साइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दीज आर सम सॉफ्ट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। आपको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। अगर लेट सपोज एक SOP गिवन है आपको अपनी कंपनी में कि ये काम इस तरह से करना है, और कोई सिचुएशन उससे हटके हो जाती है, तो यू शुड नो के हाउ टू डू दैट थिंग, नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैट थिंग। कोई डिज़ास्टर हो गया तो उस डिज़ास्टर में बेस्ट वे से आप किस तरह निकल, इम्प्रोवाइजेशन। और ये वैसे एक प्रॉपर एक और सेशन की वो बनती है कि व्हाट सॉफ्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग गुड इन करियर एंड आई डोंट नो रिसर्च एंड सारी चीज़ें। बट जनरली इम्प्रोवाइजेशन, गुड ओरल स्किल, ड्रेसिंग सेंस, प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस, morally thinking morally in term morally and professionally, ये सारी चीज़ें are the things which are mandatory when it comes to soft skills। और भी बहुत ज़्यादा हैं, but I think it requires more of a session। राइट सर। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट ये कि यू जस्ट टोल्ड अस कि आप अपना करियर बना रहे हैं इन अ कार इंडस्ट्री, इज इट ट्रू? Not exactly, to be honest, जो मेरा बिगर गोल है उस उधर तक जाने के लिए जो मुझे वैसे आई हैव टू डू PhD, इट्स इन माय हिट लिस्ट के बाय 28 और बाय 29 आई शुड बी हैविंग अ PhD डिग्री। लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए जब तक मुझे एक बाहर की MS की अपॉर्चुनिटी मेरी फील्ड की नहीं मिल जाती, आई वुड डू द जॉब। और वो जॉब ऐसी नहीं करूँगा मैं जो कि आउट ऑफ डोमेन हो, अपने इसके साथ जो मेरे बिगर गोल पे कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो डायरेक्टली इफ आई वुड से मेरा जो ये चीज़ मेरे ऑब्जेक्टिव्स और कैरियर्स में हेल्प आउट तो कर रही है, बट आई डोंट थिंक माई सेल्फ टू डेवलप अ कैरियर इन autonomous electrical vehicles या autonomous vehicles की industry। No, it's more of like assistive robotics, parallel robots, mobile robots, इन पे मेरा emphasize है। राइट सर, थैंक यू। Thank you.
Before we move forward, I would like to say thank you to Osama Sabir. If anyone hasn't no question at all, so we will move forward. Syed Hassan एक Sajjad. जी लेट मी जस्ट मैं एक चीज़ ये हसन से बात करते हैं, उसके जी बाद जी अब्दुलरहमान आई गेस ये दो ही क्वेश्चंस रहते हैं. किसी का टेक्स्ट भी आया हुआ है कि व्हाट इज़ योर सजेशंस टू दो स्टूडेंट व्हिच हैविंग नो गुड CGPA फ्रॉम मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट फोर्थ सेमेस्टर. अच्छा देखें, you have just done half of your degree. If you do not have good GPA, you still have 50% of chance to get a GPA. कोशिश कीजिए कि 3 तक आपका CGPA मेंटेन हो जाए. ट्राई कीजिए, देयर मस्ट बी अ रीज़न. और इफ़ यू आर सो मच मतलब इफ़ यू आर सो मच into making an impact and you want to be a leader in a particular field, और उसकी एक चेन ये बनती है कि यू शुड बी हैविंग एन एवरेज GPA, आप एक्स्ट्रा कोर्सेज जो आपके जिसमें पोर ग्रेड्स हैं उन पर रीवर्क करके अपना CGPA ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं. बट इफ़ यू आर अमंग दोस्त के 3 से नीचे है और अभी अगर आप सब में चौके भी मारे, जस्ट अज्यूमिंग एवरेज की बात करेंगे, अगर आप अगले 4 सेमेस्टर में 3.5 लेते हैं तब भी आपका CGPA 3 नहीं आ रहा, तब यू नीड टू वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग कोर्सेज एंड समवट 4 की बजाय 5 years लगा लें अपने प्रोग्राम में. बट कोशिश कीजिए, कोशिश की बात करें, इट्स नॉट अगेन कंपल्सन कि 3 तक ले आएँ. इट्स अ गुड वन. वरना नेवरदलेस यू कैन अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़. मास्टर्स की अगर आप बात करें तो मास्टर्स में आई नो अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन अब्रॉड जो जिनके 2.75 भी क्राइटेरिया है. मास्टर्स में अच्छी GPA ले लें. फिर इफ़ यू आर समवट नॉट एबल टू यूटिलाइज अनदर सेमेस्टर और बाकी एग्जिस्टिंग सेमेस्टर्स में अभी नहीं आ सकता तो डू इट. But if you are having 3, then just focus on your skills. Just focus. जी हसन, आपका क्या क्वेश्चन था? हसन और हसन, सॉरी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो इंटरेस्ट है वो एरोस्पेस की तरफ ज़्यादा है, तो बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान हम मतलब इधर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो तो ये है कि इंडस्ट्री मौजूद नहीं है या वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आप खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आई नो, आई वेरी रिसेंटली केम टू नो अबाउट fresh mechanical students in Karachi who are developing mini jet engines in Pakistan. खुद ही बना रहे हैं वो. तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी यूज इन ड्रोन्स, और जो पाकिस्तान की लोकल जो डिफेंस इक्विपमेंट है दे आर यूटिलाइजिंग दैम. PMO हो गया ये जो, या फिर ये जो आपका एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, दे इवेंचुअली इफ़ यू आर पिचिंग समथिंग जो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और आपकी वो चीज़ गारंटीड है, तो यू वुड बी देयर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसर्न उनके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं. they would instantly hire you if you are developing something, a product in entrepreneurial aspect which is aiding aeronautical industry. तो you can do that. Otherwise वैसा अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट सेक्टर में एरोनॉटिक्स की there are very few companies in Pakistan. So yeah, थोड़े से इसमें वो हैं. if you still, अगर आपकी क्वेश्चन में से हम पाकिस्तान की बात हटा दें कि if you are open to work in other than Pakistan, then bahar to it's numerous possibilities. You can work in any aspect. Agar if you have all those right requirements, ke you do not have that much financial dependency of your family, and you have some money, yeah, you can gain some money, having an entrepreneurial life को afford कर सकते हैं, then you can make your own company of maybe small drones and stuff. I know there are few of my 4 of my fellows, they are working jointly in a single drone company, and they are really making wonders. उनके पास जिनके vendors हैं, they have collaboration with military and semi-military organization, and they are working on their funded projects. और उनके खुद के initiatives हैं mostly. So yes, that's I think the answer. थैंक यू. जी अब्दुल रहमान, आपका क्वेश्चन, आपका हैंड रेज हुआ था काफी टाइम से. अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई. उस्मान भाई मेरे 2 क्वेश्चंस थे. एक जी क्वेश्चन मेरा ये कि आप भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं,
तो आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया कि इंडस्ट्री के अंदर एचआर मैनेजर्स को ये पता ना हो कि मैकेट्रॉनिक्स एग्जिस्ट करती है, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हो? क्योंकि ये मिथ्स जो है मुझे कुछ सीनियर्स की तरफ से मिली हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग जिस तरह मैं आईओटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं कैसे रिसर्च कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद वह एरिया में आईओटी की कितनी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं? ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एचआर वगैरह ये वाली बात, देखें ये अब अगर ये मैं बात कहूँ ना तो ये समवट हाइपोथेटिकल या मिथिकल समवट बनती है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल नो मैकेट्रॉनिक्स क्या चीज़ है। इवन इफ दे डोंट नो, यू कैन इजीली एक्सप्लेन देम। अगर आप एक कंपनी के एचआर से बात करने जा रहे हैं तो आपने जाहिर सी बात है उस कंपनी की रिसर्च की होगी और आपको पता होगा कि मैं इधर फिट इन हो सकता हूँ। अगर आप एक किसी फाइनेंस की कंपनी में जा रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स का काम करने, अल्टीमेटली वहाँ के एचआर को नहीं पता होगा कि मैकेट्रॉनिक्स क्या है। देर इज़ 90% चांसेस कि आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ का एचआर फेमिलियर होगा व्हाट इज़ मैकेट्रॉनिक्स, या फिर अगर फेमिलियर नहीं भी होगा तो आप आपको इंटरेस्टिंगली आपकी आर्ग्यूमेंट सुनेगा एंड अल्टीमेटली ही वुड थिंक एट सम लेवल कि हाँ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर इज समवन हु कैन फिट इन। दूसरी बात फिर आप ये उनको कह देंगे कि आपका ये प्रोसेस है, ये मेरी फील्ड के अंदर लाया था, मैंने इस पर काम किया हुआ है, या आई हैव सोल्यूशन टू सॉल्व दिस थिंग, इफ़ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी even on non-monetarily basis I can resolve it. Why would that person won't give you a chance? I mean एक understandable बात है ना, जिस पे उन्होंने 60,000 या 80,000 का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की टीम हायर की हुई है और वो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं और उनको एक फ्री का पर्सन मिल रहा है जो कि क्लेम कर रहा है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं। एवरीवन वुड डू दैट। तो ये हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे जैसे मैंने अभी बात की है फाइनेंस की इसकी, तो कोर्स यू वुड गेट अ रिप्लाई के हु इज मैकेट्रॉनिक, दे वोंट नो इट। बट अब वो भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एंड फन फैक्ट ये है कि जो एक मैकेट्रॉनिक्स का नाम है ना वही फैंसी सा है, सो उनको नहीं भी पता होगा तो वो पूछेंगे ये क्या होता है, एंड अल्टीमेटली अगर उनके लाइन से करता हो तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है फाइनेंस कंपनी या एक एक्स वाई जी कोई और इंडस्ट्री, वो दे वोंट हायर यू ऑफ कोर्स फॉर दैट। जो दूसरी बात है आईओटी की कंपनी, ये तो बहुत मतलब इफ़ यू आर अ गुड यूज़र एट लिंक्डइन यू कैन लिटरली फाइंड आउट कि अभी एज फार एज आई नो 25 कंपनीज मिनिमम, 25 से ज़्यादा बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट 25 companies who are working in embedded and IoT based products, sorry, are working in Islamabad. So they are abundant. जी अब्दुलरहमान और क्लैरिफिकेशन चाहिए या इट्स okay? Thank you, Samvi. Okay, now I got my we answer. will be taking last question from Awais Awan. Sir, first of all, thank you so much, Saman bhai, for sharing your experience. बहुत यूजफुल था ये सब। मेरे टू क्वेश्चन हैं सामा भाई। पहला ये कि जब हम लोग जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितना इम्पोर्टेंस रखती है, और सेकंड ये कि अगर वो इम्पोर्टेंस रखती है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे से जो बेहतर रैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, हमारी जो सीवी है उसको वैल्यू दी जाए। ऐसी चीज़ में आपकी फर्स्ट थिंग इट, जी मैं इसको रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, येस यूनिवर्सिटी मैटर्स इन मास्टर्स में कोई और क्राइटेरिया होता है, बट व्हेन जॉब इट डज मैटर कि आपने किधर से ग्रेजुएशन की हुई है। बट अगेन आई एम स्पीकिंग कि अगर सबके पास मतलब उनको उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट की है तो उधर जितने भी बंदे आ रहे हैं सभी इलेक्ट्रिकल हैं, ठीक है, सबको अज्यूम किया जाता है ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपकी सीवी में कोई एडेड चीज़ है, आपके स्किल सेट में वो चीज़ें जो शायद नस्ट के बंदे की सीवी में नहीं है, फॉर एग्जांपल यू कैन सिमुलेट सर्किट्स along with incorporating mechanical aspects, या आप उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज कर सकते हैं। उनको दो बंदे मिल रहे हैं एक बंदे की पोस्ट पर, वाई वुड दे कंसीडर एनी अदर पर्सन? देखिए बिगर, अगर मैं एक इंडस्ट्री में एक सेठ बैठा हुआ ना लेट सपोज, और मुझे पता है एक बंदा दो का काम कर सकता है, तो मैं उस बंदे को हायर करूँगा, शायद उसको 10-12 हज़ार ऊपर भी दे दूँगा। तो इट्स, आई वुड से ये तो एक जनरल साइकी उन लोगों की कि दे वुड ऑलवेज गिव
preference to the people who have some added skill set of an advertised post. उनको जनरली पोस्ट आती है कोई, तो उसमें रिक्वायर्ड होता है ना कि हमें ये बंदा चाहिए, उसको ये चीज़ हो, आप वो चीज़ें तो पूरी कर रहे हो, उसके अलावा भी कोई चीज़ हो, तो दे वुड अल्टीमेटली पिक अप दैट थिंग. हाँ, आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? राइट अ कवर लेटर. ऑलवेज राइट अ कवर लेटर अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे इफ इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल और सकते. अक्सर की तो रिक्वायरमेंट भी होती है. उस कवर लेटर में आप बेसिकली पेज पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं HR के बंदे को या जो भी इवेलुएटर होता है. तो जिस तरह आप एक असल इंटरव्यू में अपना लोहा मनवाएंगे ना, वैसे आप पेज पे आपको मनवाने की स्किल्स आनी चाहिए. तो दैट वुड मैटर. Thank you so much, Osama. Before we end our session, mine and Osama's mentor is present here, Ma'am Fazaila Kazmi. She is a Director of Student Affairs. So I would like to call upon Ma'am Fazaila to speak some words. Yes, please. Thank you, RAS team. You have, mashallah, arranged a very good session. Thank you, Mr. Osama bin Sabir. You have talked really well, and we are very obliged that you have taken out your time and you have added real value to the students of Air University. And for those students who were really worried about their career opportunities and they perceive that university has nothing to offer to them in this regard. I just want to add to their knowledge that university has been, putting in efforts constantly in this regard, and every year we arrange 500 to 600 internships for students, and we create, more than this number which I have just mentioned. We have created way more opportunities, but then we also experience a strange thing, that is the student response. Sometimes it happens we are looking for 20 to 30 CVs, but we hardly are able to get 5 to 10 CVs from students, despite maximum promotion of the opportunity and all. So you must, first of all, you must need to know what university is offering to you in terms of backend facilitation and services. So if you you need to know that whether a placement office does exist at your university, and it does, for how many times you have been able to connect to them, how many times you have visited them or have contacted them, and you have shared your CV with them, and in case you have already done all these efforts and you are unable to get any positive response from placement office, and you are unable to get some good internship or the job of your choice, then for how many times you have given your feedback about that service of university administration. So abhi jo baat bhi ho rahi thi, Usama was really good about this. He was quite right about this phenomena. It is you who need to take step. It is you who have to be really critical in thinking, and you have to devise your ways, and you have to think out of the box, and you have to try different opportunities. तो एक जिसे कहते हैं persevere करना, ठीक है, आपको persevere करना. If one solution doesn't work or it is not working, तो it's not right कि you sit back and just get dejected or talk about talk about universities failures and all. Rather you should be thinking why so, and you should be contacting some higher channel, some other channel. You should be try some other source to get your point across, to communicate your concerns. तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जो भी आपके concerns हैं वो administration के साथ जरूर share किया करेंगे, so that administration should be able to
come forward and जो भी gaps हैं उनको bridge करने के लिए they should be playing their role well. As for critical thinking and problem solving, yes, Sama has been able to give you very good pieces of advice. Uske साथ, I would like to add that there are some scientific approaches towards critical thinking and problem solving. So you must try those approaches. बहुत कुछ simple चीजें, for example, एक Japanese technique है Kaizen. In Kaizen approach, there are different little techniques to improve your critical thinking and problem solving approach. For example, there's 5 why approach, very simple approach. इसमें होता है कि whenever you come across some concept or some phenomena, so you must think why what it is. Once you get the answer of that, then your first why should come forward. You must ask why so. जब उसका जवाब आपको मिल जाए, वहां से you derive another why. Okay, this is so, then why so? Then jump to the next why. Okay, this is so, then why so? And then you keep on repeating, and by the time you have been able to find the 5th answer to your query, the 5th consistent why, you'll be able to get solution, the complete solution to a problem. ये तो सिर्फ एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई, ये सिर्फ different techniques हैं, there are different techniques. So there are problem based ideation, another phenomena. So must explore different small techniques, or try to try not to kill your questions inside you. Try to find out the answers using different resources. Internet, using Google बहुत simple एक आपके पास resource है आजकल की दुनिया में. और then you have got different accomplished faculty members जो कि अगर कोई एक कोर्स आप पढ़ाने में आपको इम्प्रेस नहीं कर सके, तो probably उनके पास और बहुत उनकी जो फील्ड का नॉलेज हो उसमें they are perfect. You can always have a gupshup with your faculty members, and you can always approach them and ask them to refer to you different sources of information and knowledge. There are different ways of doing things. तो बच्चों ये बिल्कुल आप अपने आप को टाइम एंड स्पेस से आजाद करके, and sky is the limit. और इंशाल्लाह ताला जब आप एक अपनी वो वर्चुअल उससे जो है उससे निकल के बाहर निकलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होंगे, there is no limit to success, there is no limit to ideas, there is no limit to creativity, there is no limit to innovation. तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आदत अपनाएं, स्टेटस को से बाहर निकलें, जीपीए और इन सब चीजों से बाहर निकले, तो इंशाल्लाह आप देखिए जब आप जीपीए की दौड़ से बाहर निकलेंगे, जीपीए आपके पीछे दौड़ेगा. ये आप एक मेरी बात बिल्कुल, यू कैन आई कैन राइट इट फॉर यू, राइट इट डाउन फॉर यू, कि जब आप सिर्फ जीपीए तक अपने आप को महदूद करेंगे तो बस सिर्फ आप एक जीपीए ही अटेन कर पाएंगे. आपको वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो एक एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड कैरियर रेडी स्किल्स, उस तरफ आप सोच ही नहीं सकेंगे. I remember कुछ वाइस चांसलर को पिछले दिनों एक बच्चे ने अप्रोच किया, उसने कहा कि जी मैं बस यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई मेरे लिए, और मैं पिछले 6 महीने से वो हूँ, जॉबलेस हूँ एंड ऑल दैट स्टफ. तो व्हेन वी इन्वेस्टिगेटेड, तो वी फाउंड आउट के that he had already approached placement office, and placement office had recommended his name in 7 different job opportunities, and he had attended 2 recruitment on-campus recruitment drives, and we have forwarded his CV to 5 more very good organizations, including AWT and all. But he didn't have that pitching skill or that effective communication skill to sell himself across. तो वो हर दफा उसके जो इतनी फेलियर्स थी कि वो डिप्रेस हो गया, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी को वो करना शुरू कर दिया कि यूनिवर्सिटी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही. तो ये बिल्कुल आज की जो सेशन है, ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको बहुत मोटिवेट भी करेगा. It's equally an information as well as motivational session for you. So thank you very much again, Osama. We'll
keep calling you back, inshallah, to add more value to our students' knowledge base and to inspire and to motivate them further. And we wish you all the best for your future plans, future goals. Thank you very much, Team RAS, once again for arranging this session. And thank you all the participants for being there and raising such pertinent questions. Thank you so much. Allah. Thank you. Before I end this meeting, I would like to say thank you to all of you who were present here. And indeed, you people are very intelligent and passionate enough to achieve your goals. आप लोगों ने जिस तरह के क्वेश्चंस किए हैं और जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, indeed you are the future of Pakistan. And as a president, I am honored enough to have you all in my society. It's our society. Thank you all. We will meet